slides. Sorry, just give me a... Yeah. We can begin, right? Yes. तो जिंदाबाद सभी साथियों को जय भीम, जोहार, सतरंगी सलाम। आज के जमीनी आवाजों के सत्र में आप सभी का स्वागत है। Today is the 97th edition of the Grounded Voices series, which began during the pandemic, and it is close to 2 years that we've been trying to every Sunday have this session. And in the past 2 years, we've had a whole range of activists, academics, organizers, and people struggling on the ground and also analyzing the contemporary social and political developments, articulate their concerns and amplify a whole range of issues and struggles. तो एक ऐसे दौर में जब जनता की और जनतांत्रिक आंदोलनों की आवाजें दबाई जा रही है, तो ये एक छोटी सी ऐसी प्रयास है जिसके माध्यम से हम जमीनी स्तर पर काम करने वाले बहुत सारे साथियों की आवाजों को एक अपने आंदोलनों के माध्यम के द्वारा स्थान देने की और हम सब एक दूसरे के कामों और संघर्षों से सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं। So in today's 97th session, we have a very timely topic, which is the Constitution at 73. हमारे पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के 75 इयर्स हो चुके हैं, संविधान हमारे देश में लागू होकर 73 इयर्स हुए हैं। तो ऐसे संदर्भ में हम किस प्रकार से, और जबकि पूरा संविधान ही एक प्रकार से खतरे में है, उसके बावजूद काफी सारे प्रयास देश में चल रहे हैं संविधान और संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए। So at a time when there is such an all-round attack on the Constitution, how do we really look at the Constitution at 73? How do we reclaim our republic? And how do we also broaden the horizons of the constitutional vision in a more progressive way? These are some of the broad aspects that we would touch upon in today's session. We have a very good panel of Teesta, Setalvad, Meera, Velayudhan, Jaha, and Jitendra, Meena, all with rich experience in their areas of work. And we have Radhika, Chitkara with us, our moderator. Radhika teaches at Jindal Law School and also is doing a Ph.D. In law from the National Law University, Bangalore. Thank you to all our speakers who joined us today, and thank you to Radhika for moderating this session. Just yesterday, in fact, in the Yuva Samvad, we had 4 young people from different movements speak very energizingly about how they continue to have faith in the Constitution and how we need to, in fact, struggle and organize much more to realize the constitutional vision. So in today's session also, I'm sure we'll hear from all our speakers about their own analysis, despite a very trying situation. And many of our friends, yesterday we had Devangana, who was also incarcerated. Today we have Teesta with us, who was just come out. So we also express solidarity, and we just had Anand come out yesterday. So there are also the small rays of hope, despite the larger umbrella of repression that we are all under. But nevertheless, salutes to all these struggles. And I hand over now to Radhika to take on the session. Thank you, Meera. And congratulations to NAPM for 97 very successful editions of Grounded Voices. एक मतलब बहुत ही relentlessly century की ओर बढ़ते हुए और बिल्कुल जैसे कि आपने कहा कि कल जो है संविधान दिवस था 26 नवंबर, just by way of some history, 26 November 1949 was the day जब constitution drafting जो है conclude हुई थी और 26 January 2 महीने बाद 1950 में जाके अडॉप्ट किया और तब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। पर हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन डे भी उतना ही मायने रखता है जितना इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे मायने रखता है। तो काफी अप्रोप्रिएट है कि आज का थीम भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान पर आधारित हो। और
constitution at 73, when we talk about the constitution at 73, I think just I'd like to start with one brief remark, that when we talk about the constitution, it is not just one thing, right? Constitution के काफी अलग-अलग अनेक मायने हैं, महत्व हैं, और पीपल्स मूवमेंट्स के नजरिए से देखें तो सबसे पहले जो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्व रखता है फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार के जो गारंटीज प्रोवाइडेड हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, चाहे वो समानता का अधिकार हो या लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल फ्रीडम का अधिकार हो, या धर्मनिरपेक्षता की गारंटी हो, सेक्युलरिज्म, रिलीजियस फ्रीडम वगैरह की गारंटी हो। और पिछले मतलब 73 years से पीपल्स मूवमेंट्स ने काफी very strongly and very assertively have claimed these fundamental rights for ourselves, to whether it is by way of your rights for women, Dalits, Adivasis, Muslims, other religious minorities, the poor and working class, within the country, where the struggle, we waged a relentless struggle to ensure that against the sort of social, political, and economic inequalities and oppression that we all face, that we're able to claim some kinds of protections, at least from the law, against these inequalities and oppressions. And so, and I'm not going to go into detail, of these struggles for rights protections, but we know, for example, that, for women's rights or for the rights of minorities, this has been a long and ongoing struggle. But at the same time, we also know that that there are ways in which the same fundamental rights guarantees have also, in some ways, fallen short of the aspirations that we have as a people, right? And especially when you look towards the guarantee of religious freedom, for example, under the Indian Constitution, and about how that has been able to protect religious freedom in very limited ways. And we see that reflected now in all the debates and issues, and all the legislations around anti-conversion laws, or, the hijab, or the essential religious practices tests. And we can, and so on and so forth, right? So when we talk about the Constitution and when we talk about the rights, I think it's worth reflecting on the promise, the aspirations, and and where we stand today vis-a-vis those rights. And also, मतलब पीपल्स मूवमेंट्स के नजरिए से हम ये भी जानते हैं कि जब हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो वो हमारे इंस्टीट्यूशंस और जो हमारी संस्थान है, सरकार है, कोर्ट्स हैं, पुलिस है, सिविल सर्वेंट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, ये मौलिक अधिकारों के सवाल से जुदा नहीं है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनका कंडक्ट, उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी ट्रांसपेरेंसी मौलिक अधिकारों के सवाल से काफी क्लोजली जुड़े हुए हैं। स्पेशली जब, जैसे मीरा ने बात शुरू करी, आज जैसे हम अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की बात करते हैं कि हमारे कैसे संविधान के दायरे के अंदर रहते हुए इंस्टीट्यूशंस जो हैं हमारे अधिकारों पर कैसे हमला कर रहे हैं बिना इमरजेंसी डिक्लेयर किए हुए, कानून के जरिए से ही, और कभी कभी तो वही अधिकारों की भाषा बोलते हुए जिस पर हमने मतलब इतने सालों से लड़ाई जारी करी है। कभी कभी संविधान ही बदल दिया जाता है, चाहे आप ये EWS रिजर्वेशंस की बात करें या 370 के एब्रोगेशन की बात करें, पर बिना संविधान बदले ही जिन्होंने भी मतलब अट्रोसिटीज पे या डोमेस्टिक वायलेंस पे या कम्युनल वायलेंस पे काम किया है वो जानते हैं कि कैसे इंस्टीट्यूशंस ही हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो
कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 73 को ध्यान में रखते हुए शायद ये ब्रॉड पैरामीटर्स अगर हम लेकर चले कि कैसे राइट्स, इंस्टीट्यूशंस, एस्पिरेशंस और पीपल्स मूवमेंट्स इन 3-4 चीजों को नजर में रखते हुए हम कैसे आज कॉन्स्टिट्यूशन का रेलेवेंस मान्य समझते हैं, स्पेशली जब वही जो वैल्यूज हैं कितनी हेवीली मतलब हमारी सरकार से या नॉन स्टेट एक्टर से भी कितने हेवीली अंडर अटैक हैं आज। तो इसी ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ मैं इनवाइट करूंगी हमारे 4 स्पीकर्स। तो मीरा ने पहले बता दिया कि हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं तीस्ता सीतलवाद, जो कि एक राइटर एंड जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट हैं, जितेंद्र मीना जो DU में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मीरा वेलयुधन जो काफी लॉन्ग स्टैंडिंग फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट एंड हिस्टोरियन, एंड एडवोकेट जहा आरा। इन चारों के साथ मतलब ये सवालों को सामने रखते हुए वी होप कि आज का ग्राउंडेड वॉइसेस सेशन विल help us to reflect on the role and relevance of the Constitution and how do we really defend the values and the rights that we really stand for today. So I'll just quickly lay out the structure of today's panel. हम पहले हर स्पीकर के पास 15 से 18 मिनट हैं अपने कमेंट्स और रिफ्लेक्शंस प्रेजेंट करने के लिए, और हम टर्न बाय टर्न जाएंगे। पहले तीस्ता जी के साथ शुरू करेंगे, फिर जितेंद्र, मीरा और फाइनली जहां के साथ कंक्लूड करेंगे। आफ्टर ईच स्पीकर हैज हैड देयर टर्न हम लोग 15 मिनट का एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, जिसमें ऑडियंस के पास अगर कोई कमेंट्स हैं या क्वेश्चन हैं तो वो पैनल को पोज किया जा सकता है और फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के बाद वापस हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए स्पीकर्स के पास आएंगे और हर स्पीकर के पास करीब 5 मिनट का समय होगा अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्रेजेंट करने का। So without further ado, I invite Teesta Setalvad to start the panel. You know, Teesta needs no introduction really, but just to frame things in context, you know, she's a civil rights activist, a journalist, and a writer, and the secretary of Citizens for Justice and Peace, which is a Mumbai-based organization defending constitutional rights for all. Teesta has worked relentlessly for decades to secure justice for victims of the 2002 Gujarat pogrom against Muslims, and has also been very actively engaged in struggles for forest rights and citizenship rights over the past few years. She's the author of the book Foot Soldier of the Constitution, which is her memoir released in 2017, and has been, and for all of her body of work, has been the subject of targeted persecution and attacks, having been incarcerated just earlier this year, and we're very happy to have you back in our midst today, Teesta. So over to you. Thank you, Radhika. बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सबसे पहले मैं NAPM को ये संवादों को जारी रखने के लिए मुबारकबाद देती हूँ। आज का जो विषय है, today's subject, which is about the whole issue of the 73rd day that we gave ourselves the Constitution, and the fact that you know, we are seeing a kind of erosion of inherent democratic functioning in our country. I'd just like to frame my presentation in 5 or 6 with 5 or 6 different ways. One is कि हाँ, अघोषित आपातकाल की बात करते हैं, we talk about undeclared emergency, but I think we should also look at issues like that have been thrown at India, that India is now being described as a partially free electoral democracy and only a partly free democracy. And what do these words actually mean? कि इलेक्शन के बल पे अगर सरकार चलती है और वो इलेक्शंस अगर पैसों और प्रोपेगेंडा के बल पे चलाए जाते हैं और इलेक्शन के
फंक्शनिंग पे भी, चाहे वो चुनाव आयोग हो या इलेक्शन कंडक्ट करने की इश्यूज हो, उसमें भी बहुत सारे सवाल, चाहे वो फाइनेंस हो, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हो, कितना पैसा कौन सी पार्टी के पास है, क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड है कि नहीं, क्या कॉर्पोरेट्स के हाथ में कितना चुनाव का पूरी यंत्रणा दी गई है, वगैरह वगैरह. If these questions are not transparently being asked by those institutions meant to ask them, then are we really talking about a free and fair election? Number one. Number two, also like to make the observation कि हमारे जो 542 हमारे जो सांसद है बैठे हुए 2014 के बाद 542, उसके बाद 2019 के बाद परिस्थिति और भी गंभीर हो गई है. तो 2/3 हमारे जो सांसद है वो करोड़पति भी नहीं, अरबपति हैं. So if we have the situation where you have a certain kind of person being elected to seats in parliament and money power playing its role in elections, and elections therefore not being completely free and fair in the sense that anybody can contest them, organizations that have been working for years on the field can actually navigate and negotiate an election, then are we now being reduced to an electoral democracy versus a constitutional democracy? And what does that mean? कि simply by saying कि बस हमारे election हर 5 साल हो रहे हैं, can we claim कि बस लोकशाही और संविधान मजबूत है, और the sovereign right of the people, जो हमारी प्रस्तावना कहती है कि we the people of India, that the sovereignty of the governance of this country lies with the people, कि किस तरह की सरकार बने, किस तरह की नीतियां बने, किस तरह की नीतियां का पालन हो, सांसद में किस तरह की चर्चाएं हो या न हो, क्या ये सब लेकर हम ये कह सकते हैं कि actually we have a constitutional republic in place, a constitutional government in place? And if not, and if we are teetering on the verge of what some of us call majoritarianism, कि बहुसंख्यकवाद की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं या आ चुके हैं, तो क्या हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की जगह पे एक मोबोक्रेसी हो गए हैं क्या? वो एक सवाल हमारे सामने है. तो आई थिंक दीज आर इश्यूज व्हिच वी नीड टू डिस्कस. ये भी हमें समझना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अगर टेक्स्ट के ऊपर बात हो तो बहुत लंबी बात हो जाएगी. मूल्य अधिकार जरूर है, फंडामेंटल राइट्स है चैप्टर 3 में, साथ साथ हमारे चैप्टर 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, निर्देशिक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, जिसके बारे में हम कम बात करते हैं. और अगर निर्देशिक तत्व के बारे में बात होती है सरकार से, तो सिर्फ 2 को लेकर बात होती है, वो गौ हत्या को लेकर और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर. मिनिमम डिग्निफाइड लिविंग वेज, फेयर working conditions, health conditions for the working class, the requirement that a government in its policy should promote scientific, rational thinking, the fact that the whole issue of right to education and the right to free basic education came through a jurisprudential understanding of Article 121 just as legal aid under Article 39. तो ये बहुत सारे गहरे सवाल है कि हमारे मूल्य अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किस तरह हमारे नीतियों को गाइड करते हैं, और क्या हमारी नीतियां वाकई ही ये हमारे संवैधानिक वसूलों पे बनाई जाती हैं, या एक जगह पे हमारा संविधान है जो जिसके ऊपर हम सलाम करते हैं, जिसको हम मानते हैं, मगर हमारी सांसद जो आज बनी हुई है, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो उभर के आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं संवैधानिक वसूल को भूल कर बाजू हटा करके एक बहुसंख्यकवाद की तरफ देश को ला चुके हैं. और इस परिस्थिति में हम किस तरह का संघर्ष कर सकते हैं? It is also being argued, if we look at the kind of weaponization of the criminal justice system and the way laws are being pummeled through parliament virtually without discussion, without debate, without dissent being accepted, without these laws being actually considered in toto, amendments to the UAPA, one example. Look at the 3 farmers laws, another example. Look at the state laws when it comes to quote unquote religious conversion, which is actually the not just control of religious freedom, but also women's autonomy to choose a partner. So all these things are happening. So it's almost as if the law is being used and weaponized against its own people. We have on the one hand,
And we have on the other the fact that it took this country almost 5.5 decades to actually pass laws like the scheduled caste, scheduled tribes, protection of forest rights, recognition of rights law, known to all of us as the Forest Rights Act, the right to information law, a law like the Manrega, the Right to Food Act, to revise a colonial land law and bring about the land and right to food. All of this took almost 56 to 60 years. So it can arguably say कि हम लोग 50-55 साल तक we were becoming a full-fledged constitutional democracy. संघर्ष अपने आवाजें सांसद पे प्रभावित करके इस तरह के कानून पास करने में सफल हो रही थी, और उसी वक्त ही एक तरह का एक पूरा झटका लगाया मैं कि we now have a government in place which appears to be completely in cahoot with corporate capital. So the transfer of public resources to corporate capital that we are seeing without due discussion with stakeholders or dialogue, as we saw in the case of the farm laws, the labor codes that have been passed, which have taken over 150 years of struggle of the labor movement for not just decent living, working hours and wages, but also the triangular right to negotiate at every point with the government and with the owner of capital. तो ये बहुत सारे सवाल हैं, और इसके बीच में एक खड़ा है एक elephant in the room, वो है कि कई लोगों को, कई कम्युनिटीज को सरकारें, पर्टिकुलरली जो केंद्रीय सरकार और उनकी जो सिस्टर सरकारें राज्य में है, 16-17 राज्यों में वही सरकारें, कुछ तबकों को एक तरह से उनके दुश्मन समझ के इस तरह की गवर्नेंस चला रही है कि इट इज बिकमिंग एक्सट्रीमली फ्रैजाइल फॉर आवर रिलीजियस माइनॉरिटीज, particularly Muslims and Christians, our working class, our farmers, dissenters, thinkers, writers, humorists, people's movements. All of these people are today seen as a quote-unquote threat to a regime that just talks the language of a very aggressive, narrow national security. तो ये इस सब के बीच में हम हमारे संघर्ष किस तरह जारी रख रहे हैं, और साथ साथ आगे भी किस तरह की चुनौतियां आएंगी. I'd like to say focus on 2 or 3 aspects because otherwise the subject is very, very vast. एक तो मुझे लगता है कि आर्टिकल 19(1) व्यक्तिगत आजादी, बोलने की आजादी, असेंबल होने की आजादी, प्रदर्शन करने की आजादी को एक तरह से क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, इज बीइंग क्रिमिनलाइज, और साथ साथ नफरत भरे जबान और नफरत भरे लेख जो है have now become hate speech and hate writing has become state policy. Now we've seen over the decades, ऐसा नहीं कि रातों रात हुआ है, पहले we saw state hate as a political tool. Today we are seeing 2 things: hate as state policy and hate as a media mechanism to actually promote state policy. जिस तरह की बातें हमारे काफी टेलीविजन चैनल्स पे चलाई जाती हैं, न्यूज़ पे, प्राइम टाइम पे, जिसके खिलाफ हम भी लड़ रहे हैं, हमारा संगठन भी लड़ रहा है, बाकी लोग भी लड़ रहे हैं. We have filed over 200 complaints to the NBDSA. We filed complaints to the DGP of the police against the kind of terminology, particularly related to jihad, etc., and the stigmatizing of the Muslim minority community that is going on. बार बार रातों रात इस तरह का प्रचार, दुर्प्रचार आप कर रहे हैं टीवी पर, and the result is that on the ground also we see stigma and socio-economic boycott operating within communities, and we are not able to tackle this, we are not able to deal with this. तो एक तरह से हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो एक this conflict that has been generated between criminalizing free speech and actually making hate speech and hate writing an accepted form of delivery within a constitutional democracy is something that we really need to understand. क्योंकि ये डिबेट बार बार होती है कि कि हम किस तरह इसको टैकल करें, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पहले तो जब से मतलब 50-60 साल के हमारे सांप्रदायिक हिंसा होती थी, चाहे छोटी वाली या बड़े बड़े हादसे हुए जैसे मुजफ्फरनगर, गुजरात, बम्बई 92-93 में, तो हमने पाया कि 5-6 महीने पहले से ही नफरत भरे जबान और नफरत भरे लेख का इस्तेमाल किया जाता था, और इसका फिर नतीजा ग्राउंड पे ये होता था
कि एक चुप्पी बचाए रखने का, और how did our institutions react to it, how did the election commission react to it, how did our courts react to it. I mean, only recently we have seen some little bit of jurisprudence emerge on hate speech in the Supreme Court, 2014, then 2018, now 2019 and 21. 3-4 cases have come up. मगर समझने की ये बात है कि फ्री स्पीच को आप क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, कि बोलने की आजादी, वक्तन ज्ञान, और फ्री स्पीच और हेट स्पीच में फर्क क्या है? We need to understand that as political and social activists. If free speech is crucial to ensure that everyone gets to voice an opinion, Article 19(1), the liberty or freedom of an individual cannot wrest away either the equality principle, Article 14, or the dignity principle, Article 21, that provides we must ensure the non-discrimination of others. Freedom of expression then is also subject to equality. Then there's also equality before the law, that does the speech or writing under scrutiny affect the equality, fraternity, and dignity of any section of Indians. And I think this is very, very important to understand. Pravasi Bhalai Sangathan, the Supreme Court has for the first time identified that when hate speech and hate writing comes from positions of power, social and political power, against a targeted marginalized section, you work towards non-dignifying that section, invisibilizing that section and stigmatizing that section, also rendering that section prone and open to violence. तो ये बहुत समझना जरूरी है कि हम ये नफरत भरे जबान और नफरत भरे लेखों को लेकर जमीन पर किस तरह की कम्युनिटीज हम तैयार करें, पीस वॉरियर्स, संवैधानिक सिपाही on the ground who can actually tackle this hate speech through interacting with authorities, through building up debate and dialogue with communities, to explain that this kind of hate speech is actually detrimental to all kinds of social harmony. दूसरी बात, हमने देखा हमारे देश में 2019 के बाद जिस तरह का एक संघर्ष चला, इस तरह के very unusual and vibrant protest grew after the absolutely non-democratic way that the Citizenship Amendment Act was passed through Parliament by past midnight, 5 or 6 hour session, without debate, without dialogue, without listening to amendments from the political opposition, etc. और CA 2019 को लेकर, and given the fact that the सरकार बार बार कहती रही कि NPR NRC लागू की जाएगी ऑल इंडिया लेवल पे, हमारा संगठन जो गए 8 साल से आसाम में काम कर रहा है, and this is not me, Teesta, Setalvad working, but a vibrant young team of CJP district volunteer motivators, 25 of them in 10 districts, another 25 advocates in 10 districts, working at the grassroots level with paralegal and legal aid, with counseling, to actually reach out to families and communities who've been othered by just being declared non-Indian. What happens अगर आपको कहा जाता है कि आपकी नागरिकता छीनी गई, that you're not an Indian anymore? It's like a civil death for hundreds of thousands of people. And we've seen in Assam, 19 lakh people plus another 2.2 lakh declared foreigners and doubtful voters, and their families live together impoverished and with stigma. The state itself has spent over 1,700 crores on the issue, and we find that there is no end in sight. We have managed to get 51 people released from release camps. We continue to do that. But if there is no judicial and political solution to this on a macro scale, it will take 234 years before each of these cases gets resolved in the High Court and the Supreme Court. The issue we need to understand is, अगर आप ये NPR NRC CA को ऑल इंडिया बेसिस पे लागू करेंगे, तो क्या होने वाला है सामाजिक लेवल पे? So at the social level, what will happen? And we are heading for a period of complete social turmoil. Has the implementation of CA 2019 begun? In my view, in our view, it has, because in 19 different districts of 9 states, different 9 states, including 3 in the opposition, windows have now been ordered to be opened by executive diktat, whereby the minorities specified under the 2019 amendment will be fast-tracked into naturalization citizenship. हमारा ये कहना नहीं है कि ये लोगों को आप नागरिकता मत दीजिए. We've never said that. We've only said that please don't exclude a particular religion from a certain country, and please include other neighboring countries as well. India has had a rich culture of welcoming persons and refugees and migrants from all over, and we should continue that. सवाल ये है कि आप धर्म की एक लकीर कानून में खींच रहे हैं, and that is anti-constitutional. And we've seen that happen. And our experience of Assam is that
The political object might be to target Muslims, particularly like the Bengali speaking Muslims in Assam. But जब आप लागू करते हैं और एक ब्यूरोक्रेट को इस तरह का हथियार दे देते हैं कानून के तहत, then you are actually going to make all sorts of communities and people vulnerable. Worse still, you're going to get a social upheaval because there's going to be a lot of suspicion between peoples all scrabbling around to face a documentary test of citizenship. ये हमें समझना पड़ेगा कि CAA 2019 NPR NRC का मतलब क्या है कि basically it is trying to put a documentary test for citizenship, which is not really acceptable constitutionally or even in the original law. और आप जब दस्तावेज को लेकर अगर आप नागरिकता की सबूत देने के लिए आप शुरू करेंगे तो बस आप एक तरह का social havoc you're going to unleash. And unfortunately, one has found that certain regimes thrive on creating this kind of social turmoil. So how do we resist it? How do we face it? Of course, we'll be there for people, but how do we resist it socially and politically is a big challenge before that. We've also seen, कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे कानून 2014 और 2004 और 14 के बीच में पारित हुए that actually gave teeth to Schedule 5 and Schedule 6 of the Constitution, like the Forest Rights Act. Then the Right to Information Act deepened our democracy. Then the Land Acquisition Act, huge amendments which brought in social audit and the right of the local communities and the Gram Sabha. All of those are today being sought to be diluted or amended. So I think it's very important that these resource-based communities who are going to face the brunt, our Adivasis, our Dalits, our religious minorities, all figure out how all the struggles that we are already engaged in, and they already are engaged in, we somehow build up very, very sound alliances to be able to tackle them. Those three, I'd like to sort of wind down a little bit by flagging the fact that, you know, in the 2022, 2022 में अगर आप भारत हिंदुस्तान की आर्थिक परिस्थिति के बारे में आप अगर सोचेंगे, तो we are not in a good space or place. Figures show that while India might have the fastest growing economy, we have really huge economic disparity. The top 10% of the Indian population holds 77% of the total national wealth. 73% of the wealth generated in 2017 went to the richest 1%, while 670 million Indians who will complete the poorest half saw only 1% increase in their wealth. I mean, how much inflationary increase has the minimum wage taken? How much do our Pravasi Kamgars get? We saw the plight of our Pravasi Kamgars during the ill-thought-out lockdown and the mass migration of our people. And yet we've had very short public memories. तो ये सब बातें को लेकर हम कैसे हमारे संवैधानिक वसूलों को सामने रखते हुए, हमारे निर्देशक तत्व को नजर रखते हुए और हमारे एक हालात नजर रखते हुए कि हमारे लिए चुनौती ये है कि एक बहुसंख्यकवाद सरकार जो बहुत ही ऑटोक्रेटिक तरीके से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी, एजेंसीज को भी, चुनाव प्रक्रिया को भी वेपनाइज करके इस्तेमाल कर रही है, हम ये चुनौतियों को जवाब कैसे दे पाएंगे. आखिर में बस ये अपील करना चाहूंगी NAPM के जरिए कि हाँ, बिल्कुल सब संघर्ष इस वक्त बहुत बहुत जरूरी है, वाजिबी है, और बहुत सारे संघर्ष हो भी रहे हैं. कुछ हमारे दलित भाई बहन जमीन को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, बहुत सारे इलाकों में आदिवासी बहन भाई ग्रामीण इलाकों में जंगल जमीन की लड़ाई बहुत ही मजबूती से लड़ रहे हैं. साथ साथ उन्हीं के अधिकारों को कुचलने के लिए, उनके खिलाफ दबाव लाने के लिए बहुत सारे दूसरे कानून पारित हो रहे हैं. मगर एक जो सामाजिक जहर जो हमारे बीच में हमें उगाला जा रहा है बार बार, हमारे the hate that we are made to swallow is actually affecting communities, families, and societies. And I think, therefore, the need to fight this hatred and this pyramid of hate that my organization has designed, where prejudiced attitudes, पूर्वाग्रह का मतलब उनके attitudes के बारे में बातचीत करना, बच्चों से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता तक, फिर acts of prejudice, जब ऐसे कार्य होते हैं जिसमें पूर्वाग्रह शामिल है, जिससे हम एक दूसरे को that we actually unconstitutionally also, and the other different kinds of people. It could be transgenders, it could be women, it could be and is religious minorities. Then we have actual acts of discrimination.
कि हिजाब के नाम पे जिस तरह की एक हवा कर्नाटक में फैलाई गई, देश भर में फैलाई गई, और इस तरह का इश्यू अगर इलेक्शन इश्यू बन सकता है तो हम किस तरह समाज की बात हम कर रहे हैं। और वही कर्नाटक में साथ साथ इस तरह के कॉल होते हैं कि हमारे मुसलमान बहन भाइयों की जहाँ छोटी छोटी दुकानें हैं उसमें आप मत खरीदो, वो दुकानों को बॉयकॉट कीजिए, सोशल इकोनॉमिक बॉयकॉट कीजिए। तो ये डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिस एटीट्यूड्स, एक्ट्स ऑफ प्रेजुडिस, एक्चुअल एक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हमने तो देखा है कि दंगे और हिंसा के बाद, टारगेटेड वायलेंस के बाद गेटवाइजेशन होता है, लोगों को बस एक तबके को एक तरफ धकेला जाता है, इसकी वजह से बच्चियों और औरतों पे एक दूसरा असर पड़ता है। तो आफ्टर डिस्क्रिमिनेशन कम्स वायलेंस एंड फाइनली कम्स जेनोसाइड। तो हमें इसको प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। नफरत भरे लेख, नफरत भरे जबान के खिलाफ आवाज उठाना, बहुत ही सख्ती से और सरल तरीके से उठाना, और उसमें भी हमें थोड़ा बहुत हमारा जो स्टेट का स्ट्रक्चर, दिस इज समथिंग आई एम ग्रैपलिंग विद, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एज अ राइटर एंड अ activist and a student of law, कि how the nature of the Indian state has changed, and I think we need to understand on this and reflect on this, क्योंकि मुझे लगता है कि today we are talking about a very deep degree of political and corporate control. We are talking about not just handing over public resources to corporate capital, but we are talking about corporate to capital dictating policy. और इसीलिए एक जो बात हमारी नजर में आती है, क्योंकि हमारा संगठन सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस cjp.org.in, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनके साथ ये सब हेट पोस्ट जो हैं उसके साथ लेकर हम बहुत काम कर रहे हैं, और जो कुछ जवाब हमें उनसे मिलता है ये कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म से, वो बहुत अनोखे हैं। ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि जस्ट वन एग्जांपल एंड देन आई एंड, कि जून 2021 में एक बहुत ही गंदी घटना हुई, सुली डील्स, उसके बाद जनवरी महीने में बुली डील्स आया, बीच में धर्म संसद हुआ, उसको धर्म हम आप कैसे कह सकते मुझे पता नहीं, but we reached a stage by which a concerted ideological attempt is being made to stigmatize and debase and to violently target young Muslims, successful Muslim women and girls, as we saw, and we also saw the kind of dharma sansad that was held in quote unquote a holy city. Now यही यति नरसिंहानंद जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिसके बारे में अभी केस भी है सुप्रीम कोर्ट, we had complained, CJP had complained to Facebook, I'm winding up now, Facebook in 2018, क्योंकि यही चीज जो उन्होंने धर्म संसद में बोली 2021 के दिसंबर महीने में, उन्होंने 2018 में वही बात अपने फेसबुक पेज पे कही थी। उस वक्त हमने कंप्लेंट किया, he had about 7 to 8 lakh followers on Facebook, he was asking the majority community to arm itself and to target the minorities, और जब हमने बहुत ही डिटेल में कंप्लेंट लिखी है, how this violates Indian law, जवाब हमको 3 लाइन का मिला या 4 लाइन का मिला कि this does not violate Facebook community guidelines, और आप उनके साथ संपर्क कीजिए अगर आपको ऑफेंस लगता है। तो this sort of completely irresponsible behavior by large corporate media platforms is also something that we need to understand as activists and as people's movements. और मैं यही कहूंगी कि हमारे संविधान पे और हमारे संविधान के वसूल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेकर आजकल नीतियां नहीं बनाई जा रही, आज तक गवर्नेंस नहीं हो रहा, एंड वी आर सीइंग अ डायरेक्ट असॉल्ट बाय एक्चुअली members of parliament who have been elected in a manner and fashion, ideological and otherwise, which doesn't really respect the Indian constitution. So the question is Indian parliament being actually used to dismantle the constitution brick by brick? Thank you. Thank you so much, Teesta. I think, I mean, you've taken us through a wide sweep of the challenges that we've been encountering over the past decade or so. And very pertinently raised the issue of, has the nature of the Indian state changed? Yeah, sorry, am I audible? Yeah. So very pertinently raised the issue of, has the nature of the Indian state itself changed? Because when we look at the commitment to democracy, we notice that simply in terms of being an electoral democracy, how much that has been undermined with the role of electoral bonds, the lack of transparency, the lack of accountability, the lack of oversight and impartiality of institutions that are meant to regulate elections. You brought attention to how
Parliament and other legislative bodies are not functioning in the spirit of deliberation, consultation, and wider democratic representation, and that is evident in how the CAA or the farm laws and other laws have been passed, and perhaps it indicates some kind of a corporate takeover of our democratic institutions, and the economic crisis that we find ourselves in the middle of is no less comment on that kind of takeover. And also very importantly, you brought attention to the issue of hate speech, that on the one hand we find ourselves on the receiving end of a very repressive criminal regime which is targeting writers, journalists, activists, lawyers, comedians, and everybody else who speaks for equality, speaks for dignity, speaks for fraternity, while giving wide sway to forms of hate that actually engender violence and social conflict in our society with the endorsement of the state. So, so thank you for your very pertinent comments on democracy, fraternity, equality, dignity, citizenship, economic rights, so on and so forth. And perhaps we'll come back to you for concluding remarks at the end of the session also. I now invite Dr. Jitendra Meena, who is assistant professor at Delhi University. He's a social and political activist from Rajasthan with a very keen interest in democratic struggles, particularly struggles relating to rights of Adivasis. He's also a part of the Right to Democratic Education movement in India and a member of the DUTA Executive Committee, the Delhi University Teachers Association Executive Committee. Thank you, Jitendra, for joining us, and over to you. Yeah, we take about 15 to 18 minutes, and I will prompt you in the chat box. Thank you. Okay, thank you. Thank you, Radhika ji. Thank you, NAPM. आज जब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं संविधान दिवस के इस मौके पर, तो इस मौके पर जब अभी तीस्ता जी के बाद मैं बात कर रहा हूँ, तीस्ता जी ने बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सारी बातों को रखा है। सो मैं स्पेशली अपने आप को फोकस रखूंगा आदिवासीज के ऊपर कि जिस तरीके का राइट्स उनके पास उनको दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए उसके बाद में, और उनका किस तरीके से वायलेशन हुआ, और करंटली आदिवासी कहाँ पर खड़े हुए, इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से आदिवासियों के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और इस तरीके का जो ये लास्ट 75 इयर्स का जो डेवलपमेंट है आजादी के बाद, उस डेवलपमेंट को मैं देखने की कोशिश करूंगा आदिवासियों के कॉन्टेक्स्ट में। सो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो एक चीज हमें दिखती है कि जब संविधान के बनने की जब प्रोसेस हुई, जो कि संविधान दिवस के मौके पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं एक कॉन्स्पिरेसी देखता हूं, और वो कॉन्स्पिरेसी फर्स्ट डे से दिखती है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का इलेक्शन होना था तो कुछ प्रोविजंस रखे गए थे। उन प्रोविजंस में से एक ये था कि जो मेंबर्स होंगे, एक कम्युनिटी वाइज मेंबरशिप थी, और उस मेंबरशिप में भी ये था कि जिन कम्युनिटीज की मेंबरशिप 1 लाख होगी उसका एक रिप्रेजेंटेटिव एटलीस्ट होगा, और उस हिसाब से एट दैट टाइम लगभग 30 करोड़ के आसपास आबादी थी और 300 के आसपास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स इलेक्ट हुए। लेकिन आदिवासियों के केस में आप देखेंगे तो उस समय भी लगभग 10% के आसपास आदिवासी आबादी थी, और मोटा मोटी 29 से 30 के आसपास मेंबर्स होने चाहिए थे, जबकि फर्स्ट राउंड में 5 आदिवासियों को इलेक्ट करके, तो ये कहिए कि अलग अलग एरिया से, कुछ तो झारखंड महासभा के 2 मेंबर्स थे, 3 मेंबर्स जो है आपका कांग्रेस से आए थे, बाकी कहीं से भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। तो पहली बात तो ये कि वहां पर एक चीज देखने को मिली, वो ये था कि आदिवासियों को वहां पर भी जो रिप्रेजेंटेशन की बात आई थी उनके साथ वहां पर भी गड़बड़ की गई, वहां पे एक कॉन्स्पिरेसी रची गई, और उन्हें जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग की जो प्रोसेस थी, उस प्रोसेस में भी कई जगह गड़बड़ियां हुई, और उस गड़बड़ियों का खामियाजा हम आज तक उठा रहे हैं। और
तो ऐसे में अगर हम लोग देखें तो 75 इयर्स के बाद में जैसी गड़बड़ियों में एक चीज सबसे जरूरी था कि जब आर्टिकल 13 पे जब डिस्कशन हो रहा था, मूल अधिकारों की जब बात होनी शुरू हुई थी, तब जयपाल सिंह मुंडा साहब ने एक बात कही थी, जो पहले हॉकी टीम के कैप्टन भी थे और बाद में अलग अलग जगह पर उनके एकेडमिक असाइनमेंट्स भी थे, पॉलिटिकल असाइनमेंट्स भी थे, और झारखंड महासभा की ओर से आदिवासियों को रिप्रेजेंट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भीतर। तब उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि आदिवासियों के जो लैंड पर जो राइट्स हैं उन्हें आप मूल अधिकारों की कैटेगरी में शामिल कीजिए, और अगर आप उन्हें मूल अधिकारों की कैटेगरी में शामिल करते हैं और उसे एक मूल अधिकार बना देते हैं, तो फ्यूचर में किसी भी तरीके के जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उन प्रॉब्लम्स से हम लोग बच सकते हैं। लेकिन उस समय पर जब आर्टिकल 13 पर डिस्कशन हो रहा था तो ये बात को इग्नोर कर दिया गया और कहा गया कि जब जो कमेटी ट्राइबल राइट से जुड़ी हुई जो कमेटी है, जिसके एक के चेयरमैन ठक्कर बाप्पा साहब थे, जो गुजरात के ब्राह्मण्स थे, और दूसरी कमेटी के चेयरमैन थे गोपीनाथ बारदोली, जो असम से रिप्रेजेंटेटिव थे और बाद में असम के चीफ मिनिस्टर भी बने थे, वो भी अपर कास्ट थे। दो जो कि नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड जो कमेटी थी ट्राइबल्स को लेकर के, उसके चेयरमैन, दो कमेटीज थी। सारे आदिवासी मेंबर्स को इन दो कमेटीज में रखा गया और उसमें भी इनको सिर्फ मेंबर्स के बतौर रखा गया, बाकी जो नॉन ट्राइबल्स थी उनकी मेजोरिटी इसमें रखी गई और उन्हीं ने इस सारे के सारे प्रोविजंस को ड्राफ्ट किया गया। कहा गया कि जब इन दो कमेटीज की रिकमेंडेशंस आएगी, एट दैट टाइम हम लोग जो है उन पर चर्चा करेंगे, आदिवासियों के राइट्स पर, जमीन से जुड़े हुए जो मसले हैं उन सब पर तब चर्चा होगी, अदरवाइज उससे पहले चर्चा नहीं होगी और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और एकदम जब कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल फेज में चल रहा था, लास्ट वीक्स में चल रहा था मामला, और तब जाकर उस कमेटी की रिपोर्ट्स आती है और उस कमेटी की रिपोर्ट्स पे बिना किसी चर्चा, कोई चर्चा नहीं, और बिना किसी चर्चा के उसमें से कुछ प्रोविजंस को एक्सेप्ट कर लिया गया, कुछ को हटा दिया गया। और ट्राइबल्स का जो लैंड का क्वेश्चन था उसको ये कहिए कि बिना किसी मतलब सुरक्षा के उसको छोड़ दिया गया, उसको इग्नोर कर। और वही प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं आज तक फेस करते आ रहे हैं। जब संविधान की सभा में प्रस्तावना पे जब बहस हो रही थी, तब एक बात जयपाल सिंह मुन्ना ने कही थी और वो ये कहा था कि भाई देखिए, हम उम्मीद कर रहे हैं देश एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, एक नए दौर में जा रहा है, तो ऐसे में हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि ये देश हमारे साथ न्याय करेगा, क्योंकि हमारे साथ इनजस्टिस, हिस्टोरिकल इनजस्टिस बहुत लंबे समय से होता आया है। और जब हम नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि हमें न्याय मिलेगा, हमें भाई सबके साथ समान जो है व्यवहार होगा और उसके साथ साथ इक्वालिटी हमको ट्रीट की जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आफ्टर 75 इयर्स अगर हम लोग देखें तो ये चीज नहीं दिखती है। आज की तारीख में जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, आदिवासियों को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। वो पॉलिटिक्स के लेवल पर हो, वो पॉलिसी के लेवल पर हो, या किसी भी लेवल पर, वो कल्चर के लेवल पर हो, और किसी भी मसले पे देखेंगे तो सब हर एस्पेक्ट से आदिवासियों को इग्नोर कर दिया गया और उन्हें दरअसल एक तरीके से ऐसे सिटीजन के बतौर ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि ये हमारे ऊपर बोझ है और इनके प्रति हमें दया दिखानी है टाइप से कुछ मामला है। और असल जो सवाल थे उनको भुलाने की कोशिश लगातार हो रही है। ये तो सडनली पिछले एक साल भर के भीतर, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं और कुछ स्टेट्स में अभी इलेक्शन है और आने वाले सालों में फिर से इलेक्शन होने जा रहे हैं 24 का, तो इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में कुछ चर्चाएं सुनने को मिल जाती है। अदरवाइज आदिवासियों के क्वेश्चंस को एकदम इग्नोर कर दिया। किसी को इस बात का कोई फिक्र नहीं है कि आदिवासी क्या चाहते हैं। जितने भी लोग स्टेट में बैठे हुए हैं, स्टेट के बाहर जो लोग हैं, जितने भी गैर आदिवासी डिकूज जितने उनको कहा जाए, तमाम डिकूज को लगता है कि आदिवासियों को ऐसा करना चाहिए, आदिवासी को वैसा करना चाहिए, आदिवासी ये ठीक नहीं कर रहे, आदिवासी वो ठीक नहीं। किसी ने ये समझने की कोशिश नहीं की कि आदिवासी दरअसल चाहता क्या है, आदिवासी है कौन, आदिवासियों की जरूरत है क्या है। और हम दरअसल जिस दौड़ में लगे हुए थे, डिकूज जिस दौड़ में लगे हुए, उस दौड़ में सबको धकेलने की कोशिश होगी और उसी दौड़ में आदिवासियों को धकेल दिया और इसीलिए लगातार हम ये प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। संविधान के बनने के बाद अनुसूची 5 में कुछ प्रोविजंस किए गए और प्रोविजंस में यह था कि एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होगी, उसको असिस्ट करने के लिए, राज्यपाल को असिस्ट करने के लिए, और राज्यपाल
जो है जहां जहां ट्राइबल आबादी है उनके हिसाब से देखेगा कि किस एरिया में 50% या 50% से ज्यादा आबादी, उस एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और फिर उस इलाके का एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एडवाइजरी के थ्रू राज्यपाल देखेंगे, और लोकल लेवल पर 1996 में जो पैसा एक आया था उसके बाद में जो है ग्राम सभाओं की जिम्मेदारी दे दी गई। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप देखेंगे तो पाएंगे कि इन ट्राइबल से जुड़े हुए जितने भी शेड्यूल एरियाज थे, अनुसूची 5 जो खास करके सेंट्रल इंडिया को डील कर रही थी, अनुसूची 6 शेड्यूल 6 जो नॉर्थ ईस्ट को लेकर के जो प्रोविजन स्पेशल किए गए थे, इन सब एरियाज में अगर देखेंगे तो लगातार इनका वायलेशंस किया जा रहा है, अभी तक लगातार चल रहा है। जो संस्थाएं यहाँ पर ट्राइबल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी, वो संस्थाएं धीरे धीरे उनको खत्म कर दिया गया। लॉज को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो लगातार वो वायलेट करने की कोशिश कर रही है, और वो लगातार होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। अब जहां भी चले जाइए आदिवासियों के केस आपको ये चीज दिख जाएगी। जैसे एक चीज समझिए बहुत रिसेंट डेवलपमेंट में, वो ये है हसदेव के भीतर, हसदेव का जो जंगल है, जो जिसे कहा जाता है लंग्स ऑफ सेंट्रल इंडिया कहते हैं उस पूरे के पूरे इलाके को, तो हसदेव के भीतर माइनिंग चल रही है। लगभग 1,74,000 हेक्टेयर का जंगल है जिसको अडानी को दे दिया गया। ये इलाका शेड्यूल 5 एरिया के अंतर्गत आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर, इसे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान राज्य सरकार को दिया गया, ताकि उसका जो विद्युत उत्पादन जो विभाग है, जो बिजली प्रोडक्शन करता है, उसको दिया गया। और उसके बाद में जैसे छत्तीसगढ़ में सरकार बदली और सेंटर में बीजेपी ने मिलकर के पिछले 2 साल 3 साल पहले उसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तब्दील करके ये लैंड जो है राजस्थान सरकार ने अडानी को सौंप दी, और अडानी अब वहां लगातार माइनिंग कर रहा है। किसी ने नहीं पूछा ग्राम सभाओं का क्या हुआ, ग्राम सभाओं के राइट्स का क्या हुआ। वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने फर्जी ग्राम सभाएं क्रिएट की, ऐसे लोगों की साइन करा लिए गए ग्राम सभाओं की मीटिंग्स में जो कई साल पहले मर गए, जिनकी डेथ हो चुकी, और उन लोगों ने भी उन ग्राम सभाओं की मीटिंग्स में शाइन किया हुआ। इस तरीके की चीजें हम लोगों को वहां पर दिख रही है। तो एक तरीके का लगातार जो चेंजेस है वो हम लोगों को ये दिख रहा है, और लैंड के क्वेश्चन को जो कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर जिस तरीके से इग्नोर किया गया, वो लगातार वो आज तक इसी तरीके से चल रहा है। और जैसे हसदेव के भीतर हो रहा है, ये पूरे देश में लगातार इस तरीके की एक प्रोसेस चल रही है कि जल, जंगल और जमीन जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज को जो बड़े पूंजीपतियों के हवाले कर दिया गया, और आदिवासियों को वहां से लगातार जो है बेदखल किया जा रहा है। एक रिपोर्ट कहती है कि जो गैर सरकारी रिपोर्ट, एक संगठन थे उनकी एक रिपोर्ट थी, उसने कहा था कि पिछले अगर 70-75 साल में देखें तो इस देश का आदिवासी मिनिमम 2 बार, कम से कम 2 दफा अपनी जमीन से बेदखल हो चुका, कम से कम 2 बार बेदखल हो चुका। ये करंटली इसी डेवलपमेंट के प्रोसेस के नाम पर, जिसको कि दिक्कू को लगता है कि ये डेवलपमेंट है, वही आदिवासियों के लिए एक डिस्प्लेसमेंट है। ये कहीं उनके एग्जिस्टेंस पर हुई डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, उनके एग्जिस्टेंस के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। ये चीज हम लोगों को एक देखने को मिले। दूसरा, जब हम लोग और प्रोविजंस की बात करें, अनुसूचित शेड्यूल 5 के बाद में आपका पैसा 1996 आया, बड़े लंबे स्ट्रगल के बाद आया कि जो पंचायती राज है उसका एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज में होना चाहिए। 1996 से ये लॉ बना करके आ गया, लेकिन उसके बाद इस तरीके के वायलेशंस हमको लगातार देखने को मिले। 2006 में एक कुछ और नया डेवलपमेंट हुआ था, जिसमें कि फॉरेस्ट राइट एक्ट आता है, और फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत कहा गया कि आदिवासियों को फर्स्ट टाइम जो है लैंड पर राइट्स ग्रांट किए जाएंगे, जिसमें इंडिविजुअल राइट्स भी होंगे, कम्युनिटी राइट्स भी होंगे। लेकिन जानकर के हैरानी होगी, 2006 में जिस एक्ट को पार्लियामेंट के थ्रू लाया गया, 2006 में आने के कुछ ही समय बाद 3 एनजीओज में, जिसमें एक तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कुछ था, एक कोई शेर चीता बचाता है, कोई भालू बचाता है, और जो बड़े लिस्टों के ये एनजीओज थे, और उन्होंने आकर के सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट के खिलाफ में आकर, इस बिल के खिलाफ में आकर के अपनी अर्जी दी, और उन्होंने कहा कि अगर ये इस बिल को अगर एग्जीक्यूट किया जाता है तो, और आदिवासियों को लैंड राइट्स दिए गए, तो प्रॉब्लम ये होगी कि जो जंगल में जीव जंतु रह रहे हैं, उन जीव जंतुओं के लिए जो है ये खतरनाक साबित होगा, और जंगल से जीव जंतु जानवर खत्म हो जाएंगे। आदिवासी दरअसल जंगली जानवरों के लिए थ्रेट है। और 2008 में उस पिटीशन को एडमिट किया गया। 2008 से लेकर 19 तक उस पर सुनवाई चली, और 19 में फैसला आया कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत
जिन लोगों ने आवेदन किए थे, एप्लीकेशन दिए थे जमीन पर पट्टों के लिए, और जिनके एक्सेप्ट हो चुके हैं, जिनको पट्टे के राइट्स मिल चुके हैं, उनका तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को राइट्स नहीं मिले हैं, जिनके एप्लीकेशन कैंसिल हो चुके हैं, उन सबको अपनी जमीनें खाली करनी। आप सोचिए, जो लोग इस पूरे देश की जहां से शुरुआत होती है, इस देश की बुनियाद जहां से बनती है, वो आदिवासी है। और बुनियाद से जो लोग यहां तक रहते आ रहे हैं, पिछले हजारों सालों से जो लोग यहाँ रहते आ रहे थे, अब उनको कहा जा रहा है कि आपके पास क्योंकि जमीन का पट्टा नहीं है, मालिकाना हक नहीं है, तो अब आपको जमीनें खाली करनी। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत मात्र 19 लाख लोगों को इंडिविजुअल और कम्युनिटी राइट्स मिले हैं, जबकि इस देश में लगभग 11 करोड़ से ज्यादा आदिवासी हैं। और 19 लाख लोग हैं जो सिर्फ आपका इस देश में फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टे धारक। आप इमेजिन कीजिए, 2019 फरवरी का 20 फरवरी के आसपास, 20 फरवरी 2019 के आसपास का वो जजमेंट है। अब आप इमेजिन कीजिए, सिर्फ 19 लाख लोगों के पास फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टे हैं, इंडिविजुअल और कम्युनिटी दोनों। बाकी के जो लोग हैं, 11-12 करोड़ जितने लोग बच जाते हैं, उन पे से किसी के पास फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टा नहीं। अभी क्योंकि एक बड़ा प्रोटेस्ट हम लोगों ने उसी दौरान किया था, और उसके चलते उस डिसीजन को जो है होल्ड पर डाल दिया गया, लेकिन हम जानते हैं कितने लंबे समय। और जैसे ही उस डिसीजन को एग्जीक्यूट किया जाएगा, हो सकता है वो 2024 के इलेक्शन का वेट कर रहे हो, उसके बाद में आ जाएगा। और उसके बाद जैसे ही आएगा, तो आप सोचिएगा कि इस देश के जो आदिवासी हैं, उनके साथ क्या होने जाएगा। उन्हें कोई राइट्स ही नहीं मिलेगा, वो उनको यहां से खदेड़ दिया जाएगा, जैसे वो पिछले हजारों सालों से खदेड़ते आ रहे हैं। तो एक सिचुएशन लगातार हम लोगों को ये देखने को मिली कि इस पूरे 75 इयर्स में हम लोगों ने देखा कि हमें कहां तक पहुंचना है। हमने कुछ पैरामीटर्स तय किए कि हमारी जो है, हम अंडर डेवलप्ड है, तो यहाँ पहुंच जाएंगे तो डेवलप हो जाएंगे, हमारी इकोनॉमी इतनी हो जाएगी, उतनी हो जाएगी, तो ऐसे होगा, वैसे होगा। लेकिन इन सब में आपने दरअसल आदिवासी को साइड कर दिया, और आदिवासियों को साइड ही नहीं किया, दरअसल उनके एग्जिस्टेंस पर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और जिस तरीके की आपका ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है, कि आपकी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हो, बड़े बड़े हेलीपैड्स हो, ऊंची ऊंची इमारतें हो, और बड़े अच्छे अच्छे लोग रहे, अच्छे से खाया हो। वो जो अच्छे से खाने से मतलब है कि जो कॉर्पोरेट टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो होगा, तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन इस सब प्रोसेस में आदिवासी बहुत पीछे छूट गया, और उसका आज की तारीख में उसका एग्जिस्टेंस खतरे में है। ये एक चीज है, हम लोग लगातार देख रहे हैं। 75 इयर्स में हमने ये कमाया। ऐसे आदिवासी हम कहें तो संविधान के लागू होने के बाद दरअसल 75 साल की हमारी जो उपलब्धि है, वो ये है कि आज हम लोग जो है खत्म होने के कगार पर, हमारा एग्जिस्टेंस खत्म होने के कगार पर, ये हमारी उपलब्धि। दूसरी, अगर हम लोग बात करें इसके साथ साथ और भी तमाम तरीके का, आप देखिए कि इसी तरीके से लगातार हंसदे भी नहीं, आदिवासी लगातार अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए भी लड़ रहा है। अगर हम लोग देखें तो आजादी की लड़ाई को लेकर के कहा जाता है कि 1857 में शायद शुरू हुई थी, लेकिन मैं जानता हूं कि 1780 के भीतर, 1780 के आसपास, भागलपुर और उसके आसपास के इलाकों में, राजमहल की पहाड़ियों का जो इलाका है, वहां पर तिलका मांझी ने जो है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया था। और जो भागलपुर के पहले कलेक्टर थे क्लीवलैंड, उसको उस समय उन्होंने मार गिराया था। और वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए, क्योंकि उन इलाकों में, आदिवासी बहुल इलाकों में, अंग्रेजी हुकूमत अपनी पुलिस चौकियां बना रही थी। वहां से जो सिलसिला, अगर हम लोग पिछले 200 साल का ही हिस्ट्री देख ले, तो अंग्रेजी हुकूमत के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो सिलसिला आज भी जारी है लगातार। बस्तर हो या आपका कोई भी इलाका हो, झारखंड ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, बंगाल का हिस्सा ले लीजिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, सब ऐसे इसी तरीके से मिलिट्रीज को भेजा जा रहा था कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, उनके लिए जमीन हड़पी जा सके, और उस वहां से जो रिसोर्सेज उसको लिया, लूटा जा सके। आज की तारीख में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि शायद कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा जो फौजें हैं, वो बस्तर के जंगलों में बैठी हुई। और हम जानते हैं वो किस लिए बैठी है, इसलिए बैठी हुई है कि ताकि वहां से रिसोर्सेज को निकाला जा सके, उससे मुनाफा कमाया जा सके। आदिवासी उस रिसोर्सेज को देना नहीं चाहता, और इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि वो जानता है इसका एग्जिस्टेंस जंगल से। वो जानता है कि ये जो लालची लोग हैं, ये लालची लोग एक दिन में खत्म कर देंगे, क्योंकि आदिवासी इंडिविजुअल राइट्स की बात, इंडिविजुअल जो ऑनरशिप की बात नहीं करता, वो कम्युनिटी ऑनरशिप की बात करेगा, कलेक्टिव ऑनरशिप की बात करेगा, रिसोर्सेज को तमाम लोगों के यूटिलाइजेशन के लिए यूज करने की बात करता है।
और आप जान करके, आप शायद जानते होंगे, ज्यादातर लोग, हैरानी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब किसान आंदोलन इस देश में शुरू हुआ था उसी समय पर सिलगेर के भीतर एक आंदोलन शुरू हुआ था, और लगभग 1.5-2 साल होने को है। वो सिलगेर का आंदोलन आज भी चल रहा है, क्योंकि वहां पर पुलिसिया कैंप लगाने के लिए सरकार बड़े जोर शोर से प्रयास कर, पिछले 1.5 साल से ज्यादा वक्त को चला। तो ये सिचुएशन आज की तारीख में जो तिलका मांझी से जो विरासत शुरू हुई थी वो आज भी चल रही है। आदिवासियों के लिए बहुत कुछ चेंजेस हम नहीं देख पा रहे। वही पॉलिसी जो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी, वही पॉलिसी हमारी सरकारों की आज के दौर में है। कोई बड़ा फेरबदल हमारे लिए, एटलीस्ट आदिवासियों के लिए नहीं हुआ, कोई बड़ा फेरबदल नहीं। ये चीज भी हम लोगों को देखनी पड़ेगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जिस तरीके से आदिवासियों के जो बाकी राइट्स हैं, चाहे पेशा के तहत मिले हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो, उसको भी लगातार डाइल्यूट करने की कोशिश चल रही है। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि 75 साल की उपलब्धियों में एक चीज और जो मिलेगी वो ये है कि इस देश में जितनी औसतन आयु है किसी भी पुरुष की या महिला की, आदिवासी महिला किसी भी सामान्य वर्ग की महिला से 7 साल कम जिंदा रहे। ये हमारे 75 सालों की उपलब्धि है। एक सामान्य वर्ग की महिला जितनी जिंदा रहेगी, आदिवासी महिला उससे 7 साल औसतन एवरेज जो है वो कम जिंदा रहेगी। ये हमारी उपलब्धि है। रूरल एरियाज में बात करें तो पता चलेगा कि अराउंड 37% से ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है जो बिलो पॉवर्टी लाइन में है। ये सरकारी आंकड़े हैं। शहरों में तो 45% वो आंकड़ा है। ये दरअसल हमारे अचीवमेंट्स है जो हमने लास्ट 75 ईयर्स में जो है अचीव किए हैं। उसके साथ साथ लगातार अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर में हमारा एग्जिस्टेंस कहाँ, हिस्सेदारी कहाँ, तो हम लोग कहीं पर भी नहीं। आप रिजर्वेशन की बहुत लोग बात करते हैं। रिजर्वेशन में आपको पता चलेगा कि 1952 के आसपास से पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला, जॉब्स में भी जो गवर्नमेंट सेक्टर्स था उसमें मिला, लेकिन यूनिवर्सिटीज के लेवल पर, एजुकेशन के लेवल पर बात करें तो पता चलेगा कि 1997 में जो पंजाब हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, और पंजाब हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद जो 1 जुलाई 1997, उसके बाद से यूनिवर्सिटीज में आदिवासियों को और दलितों को रिजर्वेशन मिला था। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की केस की बात करूं खासकर, 1997 से पहले कोई रिजर्वेशन नहीं था किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आज की तारीख में देखेंगे तो पता चलेगा कि लगभग 3.5% असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से आते हैं, और एसोसिएट और प्रोफेसर के लेवल पर तो अभी भी हम लोग जीरो। 75 ईयर्स के बाद में जो मसला है हिस्सेदारी की बात आई, तो हिस्सेदारी कहां पर है? जब यूपीए 1 था, यूपीए 1 के दौरान रिसोर्सेज की लूट के लिए ऑपरेशन ग्रीन हंट चला था, सलवार जुड़ू हमने देखा था कि आदिवासियों को आदिवासियों के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। जैसे अफगानिस्तान में तालिबान को पहले खड़ा किया गया, फिर तालिबान से लड़ने के लिए भी फिर मिलिट्री भेजी गई। यहाँ भी इसी तरीके से किया गया, पहले आदिवासियों से लड़ने के लिए फौज भेजी गई, और फिर जो है आदिवासियों से लड़ने के लिए आदिवासियों को खड़ा किया गया हथियार देकर के, सलवा जुड़ूम के नाम से। उस ग्रीन हंट की कहानी हम सबने देखी। उसके बाद में अभी ऑपरेशन समाधान और प्रहार के नाम से जिस तरीके से ट्राइबल एरियाज में मिलिट्री को भेजा जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि गृह युद्ध छिड़ा हुआ। हम देख रहे हैं कि उस दरअसल ये पूरा का पूरा ऑपरेशन आदिवासियों को खत्म करने के लिए, उन जंगलों को छीनने के लिए चल रहा है। जिन संस्थानों के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, वो ऐसे करते हुए दिखे नहीं, कहीं से भी हमें नहीं दिखे। 90 अगर हम लोग देखें तो आफ्टर 75 ईयर्स अभी तक सुप्रीम कोर्ट्स में या हाई कोर्ट्स में हमारी जो हिस्सेदारी है वो लगभग नहीं के बराबर है। पूरे 75 साल के इतिहास में अभी तक सुप्रीम कोर्ट के भीतर एक जज पहुंचे, सिर्फ एक। हम कैसे क्लेम करें? हमारे लिए बड़ा संकट है, और कहा जाए कि आप साबित कीजिए, कैसे साबित करें? बहुत मुश्किल है साबित करना। हिस्सेदारी के नाम पर आपको पता चलेगा कि सिर्फ जेलों में हिस्सेदारी मिलेगी, जहां आपको नक्सली बता करके या कुछ और बता करके जेल में डाल दिया जाएगा, या कोई और लोग होंगे जो आदिवासियों के हकों की बात करेंगे, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। फादर स्टैन स्वामी हम लोगों के सामने है, जेल में उन्हें मार दिया गया।
और इसी तरीके से आप देखेंगे तो जो लोग बात कर रहे हैं उन्हें नक्सली बता करके या और तमाम तरीके की चीजें हम लोगों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ साथ तमाम तरीके के मामले लगातार हम लोग देख रहे हैं। इन समय जुडिशरी से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं पूरी हो पाई कभी। इसलिए अगर हम लोग देखें तो पाएंगे कि आफ्टर 75 इयर्स आदिवासी वहीं का वहीं खड़ा है जहां कॉलोनियल इरा में खड़ा, उसके पास बहुत कुछ नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यही वो सारी बातें हैं जो मुझे कहनी थी, और इसमें कोई और सवाल होंगे तो मैं उन सवालों को, जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जितेंद्र। मैं बस जल्दी से थोड़ा ट्रांसलेट कर दूंगी इंग्लिश में उन साथियों के लिए जो शायद हिंदी में इतने कन्वर्सेंट नहीं है। तो जितेंद्र addressed for us the issue of the promise that the Constitution has delivered for Adivasis over the past 75 years of independence. He talked about starting from the beginning, about how there was very little representation of Adivasis in the Constituent Assembly, and there were very few voices in the drafting process to address the Jal Jangal Zameen question, the question of land, forest, and resources of Adivasis. And he took us through the debates, between in the subcommittees involving especially Jaipal Singh Munda on the question of the fifth schedule and autonomy and self-governance of tribal areas. With the point that whatever was lacking in representation in the Constituent Assembly, we're witnessing the effects of that today, where scheduled tribes and Adivasis are facing an existential crisis, like a crisis of existence, having been marginalized not only from political life but also from cultural life and economic life, and about the continuous story of displacement in the name of development first, where there is an imagination of development which is around mining and infrastructure and roads, etc., at the cost of natural resources and the lives and cultures in tribal areas. And he gave us the example of Hansdeo, which is a fifth schedule area, where mining has been going on for the past decade or so without the consent and consultation of Gram Sabhas, which indicates a clear trend towards the corporate takeover of natural resources. And while earlier, while the displacement on account of development and the development discourse is still continuing, he also talked about the challenges in the name of conservation, which are very clear in the February 2019 Supreme Court order in the case of Wildlife Trust of India and Wildlife Conservation of India, where those communities whose forest rights titles have been rejected have faced the threat of eviction pursuant to this Supreme Court order. He also talked about the long history of militarization of Adivasi areas, which is evident, of course, in Bastar, which is, after J&K, the second most militarized region in the country, and connecting that to today's struggle in Silgir, where where people have been resisting the setting up of security camps in village, and of course we know that that there was police firing in Silgir, and a number of people were arrested, and Hidme Madkam, of course, continues to be in jail even today under UAPA. While all of this, while this displacement from Jal Jangal Zameen has led to an existential crisis for Adivasis in the country, he also talked about the
continuous marginalization of development itself. So we're talking about the life expectancy, poverty levels, about exclusion from reservations in education and employment, which is a continuing story until today. So while Adivasis continue to be underrepresented in universities and employment, they are overrepresented in prisons as criminals, as terrorists, as Naxals, and remembering Father Stan Swami's incarceration and death in custody last year in July. So we thank you, Jitendra, for those remarks, and we'll come back to you in the Q&A and the concluding remarks section. Thank you very much. अब हम आगे बढ़ते हुए मीरा जी की ओर बढ़ते हैं. So Meera Velayudhan is a feminist activist and a historian who has been involved in gender studies right from its inception in the late 1970s as a field of study, with a focus on historical and contemporary movements. मीरा जी पहले IAWS इंडियन एसोसिएशन ऑफ वुमेन स्टडीज की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं, और क्योंकि आज संविधान दिवस से रिलेटेड हम चर्चा कर रहे हैं, तो मीरा जी इज द डॉटर ऑफ द थायनी वेलयुधन, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक अकेली दलित महिला मेंबर थी उस समय में. तो मीरा जी, ओवर टू यू. Thank you. Thank you, my namesake Meera and the National Alliance of People's Movement. In fact, as part of Indian Association of Women Studies, we've had very close relationship with the National Alliance of People's Movement. Many of the representatives have been part of the Indian Association of Women Studies. So there's a long history of associating women's studies as a movement with people's movement. So I'd really like to thank Meera and the National Alliance of People's Movement for this opportunity to speak. I'd like to locate quite a bit of the discussion, the recent constitutional conversations. I will keep going back to the Constituent Assembly debates and the women members who shaped some of the ideas which went into the making of the Indian Constitution. And firstly, I would like to say that how in this 73rd year, how the whole idea of India that got represented in the Constitution was actually rooted in diverse popular movements. There were intellectual contests, there were interactions and varied notions of justice, including social justice in different regions and in different movements in the pre-independence era. So this actually forms, these kind of history is very significant in forming of the varied movements in different regions, different movements, how they shaped the Constitution and what went into the Constitution. And also I'd like to say what not only my mother, but also the other 15 women members of the Constituent Assembly, they kept talking about, even including my mother, Dakshayani, on how you need a new framework for life and for renewing people on a new foundation, and how the real safeguard, there needs to be a moral safeguard also. So I think this is very significant because it also talks about the constitutional morality. It really implies a constitutional morality, which Baba Sahib Ambedkar spoke about in much more detail. And what we see, it's very interesting to see that how the women members actually foresaw some of the issues that we are addressing today as constitutionally key issues. For instance, not only they spoke about labor and caste slavery and human trafficking, Devdasi, control over state, over religious institution, minority rights,
how minorities should not be made to prove their loyalty, etc. But also very significantly about decentralization of powers against nomination of governors, and if there was a kind of conflict between nomination of governors by a central government, and if the state government was in an opposition, that could create a kind of conflict. So I think this was foreseen by the women members in the Constituent Assembly, and also against centrally administered areas. This is very significant if you see all the Armed Forces Act, centrally administered areas, is kind of those. I think is sort of against centralization of power and its militarization and its arming against the people. I think that is very significant, which actually appeared in the constitution debate. Also also significantly what was put forward is that the constitution should be put forward for debate in the first general elections. I think that's very significant because it makes it's not just the constitution that's confined to the Constituent Assembly member, but people around in varied movements and various sections would react to the constitution, give their opinion. So I think that is a kind of very strong democratic element that was there, which went into what these women representatives in the Constituent Assembly put forward. And I think about Baba Sahib Ambedkar, the same thing about constitutional morality. I think the whole, he pointed to the contradiction between the political, which upholds principle of non-discrimination, while social and economic inequalities persist and perpetuate discrimination, and also the obligation of the state to ensure dignity, justice to all sections of people through social and economic right. I think this sort of gives his stress on the transformative and radical potential of the directive principles, I think, comes forward in this very strongly. And Kannaviran has spoken on this quite a bit, written on this in Tools of Justice, the book Tools of Justice, as well as in Kannaviran's various kind of judgments in which this. So I think what is significantly that was brought out is that while discrimination can be a shared experience, there could be specific histories, locations that we can understand if we sort of link Article 15 non-discrimination with Article 21 right to liberty, which can have distinct features, which sort of means that they can, whether it's people with disabilities or Adivasis or Dalits, religious minorities, LGBTQT sexual minorities, the condition of liberty can vary, but you need to look at these in terms of in an intersectional understanding. And this has a significance for the movement itself, because then the movement will understand that how these conditions, we can have common struggles. At the same time, there are these conditions of liberty and discrimination which are specific. And this has a significance in our understanding of broader alliances that are getting forged. And also that, one of the things I think that which even women's studies and as well as how all these sections which I just noted, how they face disabilities and violent discrimination in everyday life, how in newer forms that are taking place, And so we need to look at the multiple points and axes of inequalities, prejudice, discrimination, and power relations which underline these. And so this intersection systems of inequalities, they also are getting challenged by counter-cultural discourses, which our earlier speakers have spoken about, and also by varied social movements discussing power, violence, and justice.
this sort of, gives us a more nuanced understanding of agency and the kind of current movements that are ongoing. And what one would like to also add is that how what's happening, and this has been mentioned by both Teesta and as well as by the other speaker, that how labor, and particularly in the globalizing situation now, the violence of development, how it is sort of accentuating displacement and dispossession and alien of the people from land resources and their livelihoods. And it also gives a vulnerability to the tribals, as Jitendra has said, to protect their rights and also or to control and use land and forest, as well as their pluralistic cultural identities. Like in the Northeast, you can see these are also very significant, the link between these, and in fact, the intersectional analysis of violence, you have to look at identities and institutions that lead to gender-based violence. How caste and religion in varied forms of patriarchies intersect, and how, like if you look at the intercaste marriages and beheading of, say, of a Dalit girl, for example, and how these people's overlapping identities and allows how if we look at it, allows the unraveling of multiple points and axes of prejudice and oppression that can contribute to everyday experience of marginalized gender, So this is a kind of an approach which grows, the Dalit feminist movement has put forward these about Dalit women speaking differently and frame their struggles as being informed by caste, class, and gender, and drawing, how varied layers are there to the individual's identity, which was not possible using a single primary marker. And as you can see in the Shabanu case, how intersecting of being a Muslim and a woman was at conflict. And so how religion and patriarchies, sort of interact with each other. And, recently you can see about the genital mutilation of within certain communities, as well as, you see about how religion, the contemporary popular religions and spiritualities, particularly urban popular religions, folk religion, a lot of middle class women, other sections are being drawn into it. And there are multiple modernities which are involved, So which I think we need to look into when we shape our struggles, And also, that what Teesta also mentioned is how there's a reconfiguration of categories, not only in electoral politics, this root majority that you have in the parliament, and including constitutional categories. So newer political subjectivities are being formed. Caste, community, nation are being reshaped in these debates, in these struggles, and rescripted in the lines of homogeneous religious conceptions which marginalize sections of its own citizens. There are also ongoing protests. We have to mention that there are engagements opposing these and judicial challenges and failed, how implementations has failed. Also, the dominant discourse in an attempt to conflate caste discrimination with a series of neutral terms that designate inequality broadly via poverty and unemployment. The parliament which passed the thing on reservations and the new categories. And so these sort of projects the beneficiaries of the reservations such as Dalits and other sections as not understanding their own real interest and stand for the interests of their community, and how merit and efficiency are affected in state institutions. This erodes the meaning of content of discrimination and overlooks some of the debate on reservation, and in a sense
naturalizes caste privilege. And Professor Gopal Guru has said the framing of untouchability insulates the source of untouchability, captures only the sides of untouchability. The identity of the oppressed caste remains unproblematic, whereas the untouchables are classified and regulated. So I think this is a very significant kind of thing, reading of even in the Constitution what it needs to go beyond. And so therefore I come back again to what Baba Sahib Ambedkar said about the contradiction between the political sphere, which upholds the principle of non-discrimination and social and economic rights, whereas inequalities persist and discrimination is perpetuated. So it's an obligation of the state to ensure dignity and justice to all sections of the people through social and economic rights. Justice notions in violence, caste violence, for instance, have of course expanded through varied acts, Untouchability Offences Act and Protection of Civil Rights Act, SC/ST Prevention Acts, which sort of brings in sexual violence in a particular way into the center of these laws. But at the same time, the inequalities and the warnings given by Baba Sahib Ambedkar about the inequalities, social and economic, as well as the centralization, the trend towards authoritarian power that it could lead to also in his last speech in the Constituent Assembly. I think this we need to keep in mind. And with this, I would sort of end my presentation. Thank you, Meera ji. मैं अभी थोड़ा ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगी काफी क्योंकि हिंदी में मतलब क्योंकि काफी थ्योरी हैवी रिमार्क्स हैं आपके, तो मैं भी थोड़ा हिंदी में स्ट्रगल करूंगी ऐसे मतलब सब्जेक्टिविटी को हिंदी में कैसे बोलें। बट पर मीरा जी ने कहानी शुरू करी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, मतलब जो संविधान को ड्राफ्ट करने के लिए जो सभा बिठाई गई थी और कुछ 2.5 साल तक चली थी, और उसके अंत में जो है हमारे लिए ये संविधान निकल के आया था। तो मीरा जी ने बोला कि जो इस सभा में जो महिलाएं थी जो कि काफी कम संख्या में थी, पर उनकी क्या भागीदारी, उनकी क्या हिस्सेदारी रही, और कैसे जो उन्होंने क्या दूरदर्शिता दिखाई थी कि आज तक हम जो है उनके सवालों से जूझ रहे हैं। तो पर्टिकुलरली जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का सवाल है कि जो अब जो नया समाज बनने वाला है वो किस आधार पर बने, कि वो क्या कास्ट और जेंडर इनइक्वालिटी, असमानता के आधार पे बना रहेगा, या फिर इसके लिए नया आधार क्या ये संविधान हमें दे सकता है क्या। और यहीं पे जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी बोला था कि संविधान में तो हम पॉलिटिकल इक्वालिटी माने राजनीतिक समानता की बात कर रहे हैं, पर हमारे समाज में अभी भी सामाजिक असमानता और इकोनॉमिक असमानता जो है काफी गहरा जड़ है उसका। तो क्या संविधान उसको निकाल पाएगा कि नहीं। साथ ही साथ जो माइनॉरिटी राइट्स, जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस, सिख वगैरह के अधिकारों की बात थी, पर फेडरलिज्म के ऊपर भी काफी सवाल उठाए गए थे कि कैसे जो है सत्ता को डिसेंट्रलाइज क्या बोलेंगे, सॉरी, हाँ, सत्ता को जो है सेंटर में समेट कर नहीं, पर स्टेट्स के पास भी उतनी ही सत्ता होनी चाहिए। तो जो गवर्नर का जो रोल है स्टेट्स में, उस पर भी सवाल उठाए गए थे, महिलाओं ने उस वक्त भी सवाल उठाए गए थे। ये भी बोला था कि संविधान को जो है केवल एक बंद कमरे में
बनाकर पास ना किया जाए, पर बल्कि उसको लोगों तक लेके जाया जाए ताकि लोग भी उस पर जो है वोट कर सकें और अपने विचार प्रस्तुत कर सकें। यहीं से जो है हमारी लोकतंत्र जो भाव है वो इसी पॉपुलर मैंडेट से निकल कर आएगा। पर काफी ध्यान दिया मीरा जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के क्वेश्चन पर, और जो ये राजनीतिक समानता और जो सामाजिक असमानता के बीच की दूरी है, कि इस पर क्या नजरिया था बाबा साहेब का और बाकी जो महिलाएं थी उन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कि जो हम आज इंटरसेक्शनैलिटी जो कहते हैं कि असमानता के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग आइडेंटिटीज के तौर पर वो प्रस्तुत होती है, और कभी रिलीजन, जेंडर, कास्ट वगैरह मिलकर जो है महिलाओं की तरफ हिंसा जो है क्रिएट करता है, या दलितों के खिलाफ हिंसा क्रिएट करता है, कि ये समझ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में भी काफी दिखाई दी गई। पर जो सबसे मूल्य जो विचार यही रहा कि कैसे समाज को भी बदलाव की ओर ले जाया जा सके। ये सिर्फ एक संविधान को केवल एक राजनीतिक डॉक्यूमेंट ना समझकर, बट एक सामाजिक डॉक्यूमेंट जो कि समाज के आधार को बदलने की शक्ति रखता है, उसको कैसे समझा जाए। तो उम्मीद है कि ये अनुवाद कुछ हद तक जो है कैप्चर कर पाया है, क्योंकि काफी लेयर्ड एनालिसिस आपने प्रेजेंट किया मीरा जी। थैंक यू फॉर दैट, एंड सॉरी फॉर नॉट डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन ट्रांसलेशन। तो इसी दूरदर्शिता को नजर रखते हुए अब हम एडवोकेट जहां आरा की तरफ बढ़ते हैं। जहां आरा है एक वकील हैं, एडवोकेट हैं विशाखापट्टनम में, जो पिछले 26 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं, और काफी डेमोक्रेटिक ग्रुप्स के साथ उनका संबंध है। ह्यूमन राइट्स फोरम के साथ जुड़ी हुई हैं, मुस्लिम थिंकर्स फोरम, इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स, प्रोग्रेसिव विमेन राइटर्स फोरम। तो एक वकील के बतौर, एक माइनॉरिटी के बतौर और एक राइटर के बतौर आपको इनवाइट करूंगी, प्लीज फॉर योर रिमार्क्स। थैंक यू। Thank you, Radhika. Friends, so reclaiming republic, today's topic. Nowadays in India, we are reclaiming the history by revenging the history against the Muslim minorities. So speaking on the reclaiming of republic is, first of all, we have to concentrate on one thing, whether the 75 years of independence, we are a democratic republic, sovereign, socialist, secular democratic republic, whether the democracy is overwhelming or surpassing the republic in a negative sense. The majoritarian democracy, which is a people's democracy and a representative democracy, and we are heading towards a participative democracy since last 75 years. But since few electorates, 7 or 9 years, we are losing the features of the republic or not. So the basic component of a republic is protecting the individual rights and the minority rights. So what is happening in India since few years, whether we are able to protect the minority rights, whether the individual rights, or we are giving any respect and dignity to the individual rights, freedom there, and preambles, whatever the features of the preamble, fraternity, liberty, equality, justice, whether nowadays the Indian citizens, especially minorities, especially those people who speak against the ruling governments, or who show somewhat dissent towards the majoritarian beliefs and majoritarian faiths and majoritarian perceptions, whether their rights are protected or not. So that we have to discuss today. And I take it, means most of the speakers they spoke about the tribals, they spoke about the
intersectional feminism and gender discrimination, and Teesta madam spoke about everything. I want to confine my discourse only relating to minorities, and especially nowadays, what is going on against the Muslim community, and I want to concentrate on it. So Muslims, we are we are losing everything, the total citizenship in all forms, socio-economic and political citizenship of Muslims are being taken away by some majoritarian political philosophies. When you observe, in the name of COVID jihad, or in the name of love jihad, in the name of ghar wapasi, in the name of mob lynching, in the name of cow trade, what you are eating, how you are dressing, and boycotting the Muslim trades, and every socio-economic and political life of Muslim is being criminalized with a deliberate and a conspicuous acts by some of the majoritarian groups and the political parties. So there are a lot of anti-conversion laws, and my citizenship is questioned with the CAA laws and the NRC laws, NPR laws, and everything. Just you have seen that bully deal, Suli deal, who shown dissent towards the government, especially Muslim women. A Muslim woman who is aged about 72 years also was kept in the website of the Suli leaders, stating that today the price of this Muslim woman is, who is a senior citizen of 72 years old, relating to Jamaat-e Islam Hind, and she is an active participant of the last. We have seen the Ayodhya judgment, we have seen the hijab judgment, and the controversy on the hijab, and also regarding the Islamophobia, regarding the bulldozer justice, what is going on UP, is everything what is happening in India, that the direct attack on the social citizenship and the political citizenship of the Muslim community. How it became the attack on the political citizenship of the Muslim communities, I want to give a small example. After the partition of India, we Muslim community, the scars of the partition, and we were labeled as the anti-nationals, or we are labeled as we belong to not to India but to the Pakistan. So many allegations are there against the Muslim communities. With the insecurities, the Muslim community grown up, and for a vote bank politics, the prior governments which are there, the Congress government or some other governments, in the name of secularism, they have kept the Muslim community only as a vote bank community. So the appeasement of the minority community for the vote bank did not give any fruitful achievements to that community, because though for the last 70 years, now what is the narrative is going on in the majoritarian sectors by these ruling parties, that marginalization of the majority community due to the appeasement of the minority communities. The majority community is nowadays shown as the victims of the past history, victims of the Muslim rule, victims of the British colonial rule, and victims of the minority appeasement which was done by the Congress. So the vote bank, again, the Muslims became also a part of a coinage of vote bank. By showing Muslims as a threat, the majority vote bank was polarized by the ruling parties. So what the minority appeasement gave to Muslim community? If you go through the Sachar committee report, which came in the year 2005 or 2006, it shows that Muslims are vulnerable than the SC scheduled caste communities and just better than the scheduled tribe community. As there is a lack of time, I don't want to put forth any of the data regarding the Muslim employment or the Muslim education or regarding the Muslim status in all the fields, in the education institutions, in the dropouts of the schools, and in the higher level educational institutions and the premier education institution, and the employment of the Muslim in various sectors of the government. Every data shows that Muslims were not placed better than the scheduled caste community. So that is the scenario. That scenario itself, it proves that Muslims appeasement was done nothing to the Muslim community, because neither the Muslim leaders nor the ruling past parties has done anything for the Muslim community. Now coming to the present scenario, what is happening? So now the government, a person who says that
the person who is ruling our country, once he was the chief minister of a state where the ethnic cleansing was done against the Muslims. And in an interview given to the BBC 6 or 7 years back, the same person told that how you feel about the ethnic cleansing at the Gujarati genocide. He says, if some puppy comes into under my car, what is the feeling on me? The same feeling will be, it is going to be manifested against the genocides of the Gujarat. So another person who told that take away the bodies of the dead Muslim women and rape them, now he is ruling the state as a chief minister. In this scenario, speaking about the Muslim minorities, where Muslim houses are destroyed on the name of the bulldozer justice, when you show any dissent, if you show a dissent, if you throw a stone under the guise of the Protection of the Public Properties Act, and without going into the proper form of adjudicating the said, enforcing the said act, the houses of the stone peddlers were destroyed. Some of the UP leaders, what they are saying is, आज तुम पत्थर फेंकोगे तो जुमा के दिन, every Friday will be followed by a Saturday, and your thrown stone will destroy the stones of your house. आज आप एक पत्थर फेंकेंगे तो कल सुबह आपका घर पत्थरों से सैटरडे में गिरा पड़ा होगा. So कोई ये impunity कहाँ से आई है? From where this culture of impunity came? If a person was killed in the name of mob lynching, checking whether he is eating the beef or whether he is eating the meat or whether he is refusing to chant Jai Sri Ram, तो ये mob lynchers को इतना immunity कहाँ से आता है? When a women Bilkis Banu, the accused of the Bilkis Banu, after a full-length trial in a sessions court and in the high court, were convicted when they were released on parole by without considering the rules of the parole, and they were being respected and they were respected and they were garland and the sweets are given to all the persons after their release. So ये impunity कहाँ से आया? इतनी impunity कहाँ से आया? अगर कुछ हेट स्पीच हो जाता है, अगर बुली डील में किसी औरत को रख देते हैं who speaks progressively, तो उसके बारे में भी कोई बातचीत नहीं होती है. In every day, as Teesta has stated that मीडिया पे कोई ना कुछ against the Muslim community के बारे में बातचीत चलती ही रहती है. We became habituated to hear all those things. हम लोग को क्या हुआ है? We being the citizen of Indian, we are habituated to see the criminalizing acts towards the Dalits, towards the tribals, towards the Muslims, towards the minority Christians. ये सब हमको चीज क्या हो गया है? We are taking a revenge, we are reclaiming the history by taking the revenge against the past history. इसके लिए हम लोग किसको खड़ा रहे हैं? We are victimizing and criminalizing the Muslim community. So the political status and the political citizenship of Muslim community is also taken away by stating that the ruling party is clearly pronouncing and declaring that we don't want any vote bank of the Muslim community. If you observe the MPs in the parliament, you will find hardly 4 to 5 Muslim MPs. 5-6 साल के बाद आपको वो भी नजर में नहीं आएगा. Most of the states do not have the Muslim CMs. Most of the states which have the Muslim minister, they relate only to the minority departments. ये political representation की बात है. तो political citizenship भी, जैसा जो political citizenship है CAA NRC का, they are planning to enforce the CAA NRC NPR in a chronological way in pan India. तो pan India पे आप लोग ये NPR NRC CAA को आप रखेंगे तो कहाँ पे जाएंगे? जो भी मुस्लिम्स है, जो भी डाउन ट्रोडन सेक्शंस, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के दलित थे, जो भी यहाँ से मैंने ट्राइबल्स है और जिसके पास कोई official cards नहीं है, official documents नहीं है, so the state is waging war against its own citizens in the name of national integrity, in the name of the national security. तो इस पूरा जो बिल्किस बानो के जो भी convicted थे वो बाहर आने में किसी तरह का ज्यादातर का अप्रोच नहीं आया, and none shown any dissent against the what is happening against the Muslim communities and the tribals and other marginalized section के बारे में कोई कुछ आवाज ही नहीं उठाते हैं.
तो ये जो गलती करते हैं परपेट्रेटर्स ऑफ द एक्यूज्ड है, हथरास का जो केस हुआ था, हथरास में जो रेप हुआ था, हथरास के रेप में एक्यूज्ड के पीछे जितने भी लोग ठाकुर कम्युनिटी और सम अदर अपर कास्ट कम्युनिटीज, दे केम एंड दे सपोर्टेड द एक्यूज्ड. कथुआ केस में जो लॉयर शी इज द प्रोसिक्यूटर, वो बच्ची के तरफ से प्रोसिक्यूटर थी, उनके जो थ्रेट्स मिले थे, ये सब जो माने खुले आम पे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज पे, माइनॉरिटीज पे जो अटैक्स होते हैं, और दलित पे जो अटैक्स होते हैं, ट्राइबल्स पे जो अटैक्स होते हैं, और कोई बात कर लेते हैं, किसी को कम्युनिस्ट के नाम पे मारते हैं, किसी को नक्सल के नाम में मारते हैं, किसी को माओइस्ट के नाम में मारते हैं, जो भी अगर बात करते हैं, तो हर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे एक डिसेंट पे जो अटैक होता है, अटैक करने के बाद भी दे फील से कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी. कौन सी समाज इस कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी को उनको देता है, कहाँ से आता है? We are speaking about the democracy. We are speaking about the constitution. We are speaking about the morality of the constitution. ये जो मेजॉरिटेरियन का जो विक्टिमाइजेशन का फिलॉसफी है, नेशनल इंटीग्रिटी का, नेशनल यूनिटी का, हिंदुत्व का फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी अचानक क्रॉस सेक्शन ऑफ द इंडियन कम्युनिटी में फैला कैसा है? ये अचानक नहीं बना है, ये कब से बना है? इसका कई सालों से ये बनता हुआ बाहर उभर के अभी आया है. Against the Dalits, against the marginalized sections, against the minorities, killing the spirit of the constitutional morality. ये आज देश में चलता है, वो अचानक पैदा नहीं हुआ है. But the unfortunate thing what is happened is, if you see the judgments of the courts since few years, जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो थ्योरी था, जो प्रियम्बल में जो बेसिक फीचर्स है, सेक्युलरिज्म का फीचर हो, सोशलिस्ट फीचर हो, रिपब्लिक का फीचर हो, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में हो, स्पेशली फेटर्निटी के बारे में हो, ये सब थ्योरीज के ऊपर लॉट ऑफ जजमेंट्स बीच में इस तरह आते हैं. दे आर किलिंग द स्पिरिट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आप अगर हिजाब का अयोध्या का जजमेंट आप ले लेते हैं, so what is said in the Ayodhya judgment is, though it is not proved that Ram was born in that place, lekin the majority of the people believe that Ram was born there. Is it not ridiculous to say that a declaration suit and the title suit is decided on the basis of the majoritarian beliefs? अब ज्ञानवापी का केस ले लो. Places of Worship Act 1991, which ensured that prior to 1947 जो भी places of worship से उसके बारे में फिर कोई dispute नहीं आएगा. लेकिन what is happened is, ज्ञानवापी में फाउंटेन क्या है, शिवलिंग है, whether the fountain is the शिवलिंग or whether the fountain is original fountain, इस चीज के बारे में जब केस फाइल हुआ था, that ought to be rejected by the courts, लेकिन रिजेक्ट नहीं हुआ. It went to up to Supreme Court. In Supreme Court, most astonishingly, the prominent judge, what she told is, it can be admitted, though the special statute is there. Why? Just to recognize the nature or the character of the place of worship. तो दूसरा पेंडोरा बॉक्स खुल गया फिर से. So ये जो जुडिशियल माइंडसेट है, ये जुडिशियल माइंड है, हर चीज के बारे में जो इवॉल्व होते चले आ रहा है, कहाँ से आ रहा? From which culture this judicial mind is upcoming? इसको हम सोचना चाहिए. We speak about secular India. We speak about the rights of Article 25 to 25 तक. We envisage that the Constitution gives every citizen the right to practice a religion or a faith with the individual rights. Secular कहते हैं तो आपको SR बम्बई केस में ले लीजिए, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में. केशव नंदा भारती केस में what is happened is, केशव नंदा भारती केस is, secularism is the basic structure of the constitution. We got the judgment. SR बम्बई केस तक आने से clearly stated that as it is the part of the basic structure and the state और चर्च के बीच में वॉल बन के जुडिशरी खड़ा होना चाहिए to protect the secularism. बाद में if you see the subsequent judgments आपने अगर observe किए, तो later on we Indians, by politics we are secular but not by society, or we don't know the difference between the tolerance
we don't know between the difference between the secularism, tolerance, इसके चीज का दोनों का difference जानते नहीं हैं. और what has happened is after some years SR Bommai case के बाद से live and let live, it became the definition of secularism. और when it came to hijab case पे जब कर्नाटका में hijab पहनने के लिए the two women students of a particular college, they asked the permission to wear a hijab. It is pertaining to Article 19 Class C, freedom of speech and expression. What to wear or what to not wear, it is the liberty of a woman, whether I am going to wear a hijab or whether I am going to wear a bikini. It is related to my choice. No one can dictate on my choice, that too in a secular state, that too in a republican state, because the republic is the nature of the republic is to protect the individual rights, and it is the duty of the republic is to protect the minority rights. रिपब्लिक वर्ड हमने कहाँ से लेके आया था? वी हैव ब्रॉट इट फ्रॉम द यूएस से लेके आया था रिपब्लिक वर्ड. डेमोक्रेसी आपको यूके से मिला था, लेकिन इसलिए रिपब्लिक वर्ड लाके हमने उसमें रखा था ताकि द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में विथ ड्रीम दैट एवरी माइनॉरिटी एंड द इंडिविजुअल राइट्स विल बी प्रोटेक्टेड, बिकॉज देयर इज अ थ्रेट दैट अंडर द गाइज ऑफ द मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी एक वक्त ऐसा आएगा दैट द मेजॉरिटी विल रूल ओवर द माइनॉरिटी. इसके कई एग्जाम्पल्स है. आप फ्रॉम 1950, अगर अभी जिस ट्राइबल्स के बारे में जो प्रोफेसर ने अभी बताया था, इसी तरह मैडम जैसे बताए थे विमेन के बारे में, माइनॉरिटीज के बारे में अगर सोचेंगे सिंस 1950 से ही बहुत सारे हिंदू कोड बिल है. हिंदू कोड बिल का मतलब क्या है? इन द डेफिनेशन ऑफ द हिंदू आपने सबको मिला दिया. दोज रिलीजन व्हिच आर अगेंस्ट द हिंदुइज्म आल्सो आपने सबको मिला दिया. इन द नेम ऑफ वननेस, in the name of unity, in the name of equality. Since 1950, the majoritarian religious beliefs and the majoritarian perceptions, majoritarian thoughts are everything were forcefully minorities के ऊपर, rest of the community के ऊपर दबाव डाल रहे हैं. So what has happened is, इसके बाद आप हिजाब का केस आप ले लेंगे. हिजाब के केस में when they asked that I want to wear hijab, at least the chunni which is the part of the college dress, उसको हम लेके सर पे हिजाब बन के जाएंगे. तो what is the discourse क्या हुआ था एजुकेशन में? अगर आप थोड़ा हिजाब का जजमेंट देखेंगे तो सेक्युलरिज्म का जो डेफिनेशन था वो होते होते कहाँ तक आ गया सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन. नाउ द मीनिंग ऑफ द सेक्युलरिज्म इज respecting all the religions, though state is not having any religion, we are called as a secular state. Though in the preamble we state that we don't show any difference in between the various religions and the linguistic minorities, religion denominations, और जो भी faith जो भी follow करेगा difference नहीं देखेंगे. And the operational secularism will be the protecting the interest and safeguarding of the various religious denominations. वहां से आते आते कहाँ तक चले गया? Live and let live. Now the courts are giving the judgments basing on a theory. There is no difference in between Hinduism and Hindutva. Hinduism and Hindutva का narration दोनों को कहाँ तक there is no difference नहीं है दोनों के बीच में. It is very a pathetic analysis of the court. Now उसको कहाँ तक लेके आए? We are taking it to a stage that it is nationalism का सिनोनिम बना के छोड़ दिए हैं हम. हिंदुइज्म और हिंदुत्व को नेशनलिज्म का, हिंदुत्व नेशनलिज्म का एक सिनोनिम बना के हम छोड़ दिए. इट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, वेरी पैथेटिक थिंग. प्लूरलिज्म को भूल जाते हुए यू आर फॉरगेटिंग द डाइवर्सिटी, यू आर फॉरगेटिंग अबाउट द व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टॉलरेंस. टॉलरेंस की बात ये होती है, डाइवर्सिटी की बात ये होती है, यू हैव टू एक्सेप्ट द माइनॉरिटीज or a person as he is. Not only tolerating, you have to accept them. The cultures, the beliefs, सबके. अपने ट्राइबल्स के भी हिंदू बना दिया आपको. अब मेजॉरिटेरियन परसेप्शन में लेके चले गए. Now conversion के बारे में the Supreme Court is saying that conversions are threat to national security. In 1950s नेहरू भी कहा था कि conversions are threat to national security. We are having a constitution where the basic structure says that secularism के बारे में बात करते हैं. 42nd amendment 1972-73 emergency के बाद जो आया था
उसमें सेक्युलर आने के पहले ही वी आर हैविंग आर्टिकल 25 to 30, लेकिन आर्टिकल 25 to 30 इट इज गिविंग ओनली द सोशल राइट्स, प्रोटेक्शन कहीं पे नहीं है। लेकिन दूसरी तरह हम कहते हैं कि एंटी कन्वर्शन लॉ होना चाहिए, कन्वर्शंस आर थ्रेट टू द नेशनल इंटीग्रिटी और नेशनल सिक्योरिटी, वेयर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स। रिपब्लिक के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे, मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी, जो मेजॉरिटेरियन कोई अपोजिशन नहीं है, एलियंस नहीं है, जो मेजॉरिटेरियन ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेटिव डेमोक्रेसी है, it is heading towards a dangerous way, infringing the rights of the minorities, infringing the features of the pluralistic and the diversified societies। किसी थॉट को अपने एक्सेप्ट नहीं करते हैं, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दूसरा ये हो गया। When coming to ये इसके बारे में we have to think out सेक्युलरिज्म के बारे में, कहाँ से सेक्युलर, केशवानंद भारती और बम्बई केस में कहे थे स्टेट और चर्च के बीच में कोर्ट्स विल बी स्टैंड एज द वॉल। वहां से लेके हम कहाँ तक आ गए हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व, और नेशनलिज्म का सिनोनिम हिंदुइज्म और हिंदुत्व हो गया है। सो दैट वी हैव टू थिंक ऑफ। नाउ कमिंग टू द, और दूसरी बात क्या है, सोसाइटी का जो सोसाइटल मोरालिटी है, another dangerous aspect is the majoritarian society morality is becoming the constitutional morality. If you want to challenge the rights, वो गलत नहीं है, you can challenge your rights under the fundamental rights, infringement का और rights के बारे में you can challenge it before the court of law। लेकिन जो minority practices के ऊपर, religious practices के ऊपर you are challenging it in the name of infringing of the fundamental rights। essential part practice of religion or not, ये जो नया जो theory evolve हुआ है, for जो आप लोग को याद हो ही होगा, नरसू अप्पा माली का जो गजेंद्र घाट का जस्टिस का जो जजमेंट था 1950s का, उसके बाद till now it is not overruled, और essential part of the religion हो या ना बोल के every minority practices के ऊपर जो cases फाइल हो रहे हैं on the polygamy, on the triple talaq, on the hijab, on the halala, everything. So you are what Indian majority is doing is, it is not fighting for their own rights, but it is intruding into the other religious practices in the name of protecting the, in the name of the contravening the fundamental rights। Judicial scrutiny जो article 13 के तहत जो judicial scrutiny है, it can scrutiny any law which is against the fundamental right। So when the Sharia is not codified, when the Sharia, there are no laws stating that the Islamic personal law are codified। Shariat Act है, Shariat Act 1937, what it says is you can follow Sharia, but when it is not codified, when the Sharia is not in law, and you are the courts are acting as the clergies। No, we can't discuss everything. Why the religious affairs, which is a very private affairs, those are taken before the courts by the majoritarian communities only just to take away the political vote bank। और एक थ्रेट बनाना चाहते हैं पूरे क्रॉस सेक्शन में कि सिटीजन्स और सिटीजन्स के बीच में weaponizing the minds of the majoritarian people against their own citizens। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? Is it a republic? Is it the republic that ensures the individual rights, and is it the republic that ensures the minority rights? Delhi rights का केस आप ले लीजिए। So what is the judgment of the Delhi High Court? It is stating that who are the perpetrators of the communal rights, the comments done by those perpetrators हंसते हुए कह दिया, it can't be taken seriously। Even no case is filed against them under section 295 of IPC, 153 of IPC के तहत भी कोई केस चार्ज नहीं हुआ उनके। टीवी में इतने हेट स्पीचेस आते हैं, उसके बारे में भी कुछ नहीं हुआ। सो जो फेटर्निटी है, फेटर्निटी आपको इंडिविजुअल डिग्निटी से आता है, इंडिविजुअल लिबर्टी से आता है। जो आपस में अपनापन भाईचारा का जो फेटर्निटी है, वो कब पैदा होता है? इफ यू गिव ए रेस्पेक्ट, डिग्निटी से पैदा होता है। And when you are questioning and you are targeting
the dignity of your co-citizen, co-community. What will be the fate of our democracy and what will be the future of our republic? और दूसरा आपका एग्जाम्पल देना चाहती हूँ. टेक द एग्जाम्पल ऑफ हदिया केस. हदिया केस क्या टाइम हो गया है? Then I will conclude. Q&A होगा और फिर concluding remarks होंगे, तो तब ये okay. So what I want to say is, see, this is not only about solely protecting the rights of the marginalized sections, minorities, or the SCs or the STs. अभी हाल में जो केस हुआ था regarding the Dalit status of the Christians and the Dalit status of the Muslims, और EWS का जो आपका आर्टिकल 16.4 में, आर्टिकल 16.6 में, आर्टिकल 15.6 में इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को बिलो 8 लाख जिसका भी इनकम है उनके बारे में जो 10% रिजर्वेशन दिए है, इज इट नॉट अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी और इज इट नॉट अगेंस्ट द मंडल केस? सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में, सोशल बैकवर्डनेस के बारे में, when you are questioning the social backwardness and you are appeasing the majority community in the name of social forwardness and economic backwardness. Economic backwardness का ही क्राइटेरिया ही नहीं था सोशल बैकवर्डनेस के डिफाइन करने के लिए. जो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन था, जो अफर्मेटिव एक्शन था रिगार्डिंग द रिजर्वेशन, उसको कॉन्फ्रंट करने के लिए अपने EWS को लेके आ गए हैं. Now there is no necessity to form a separate Hindutva state because we are killing the so many important elements of the basic structure of the constitution, and without amending the constitution and without making the turning the constitution into a Hindu constitution, the state is being ruled by an Hindu majoritarian politics and infringing the rights of the minorities and the other marginalized section. Sorry. Thank you for giving me the opportunity. Thank you. जल्दी से अनुवाद कर देती हूँ. जहाँ जी ने जो बोला, उन्होंने सवाल उठाया, काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या हम अभी भी अपने आप को एक गणतंत्र बोल सकते हैं क्या? और क्योंकि जो माइनॉरिटी राइट्स हैं, स्पेशली जो मुसलमानों के साथ जो ये बुलडोजर जस्टिस करी जा रही है, और पहले इतिहास में भी काफी उदाहरण है कि जो अपराधी हैं, जिन्होंने दंगे करे हो या जिन्होंने हिंसा करी हो महिलाओं के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ, उन्हीं को उनको न्याय की बजाय उनको ही इनाम मिलते जाते हैं. कोई मंत्री बन जाता है, किसी को हार पहनाए जाते हैं. बिल्किस बानो के जो अभी अपराधी हैं वो भी, उनको भी जेल से निकाल के उनको उनके साथ भी काफी सेलिब्रेट किया गया. और जहाँ जी ने काफी उदाहरण दिए कि कैसे जो हमारे न्यायालय हैं, खास करके जो सुप्रीम कोर्ट है, वो कैसे खुद ही जो है संविधान को खोखला करता जा रहा है, खुद ही के जो उनके जजमेंट्स हैं, कानून है, उनके विपरीत जा रहा है. चाहे वो हिजाब का मुद्दा हो, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा हो, हादिया का मुद्दा हो, कन्वर्जेंस का मुद्दा हो, हर तरफ से जो है मुसलमानों को दुश्मन ठहराकर उनके खिलाफ जो बदले की भावना है और नफरत की भावना है, उसको उसी को बहका रहे हैं. हमारे न्यायालय भी वही काम कर रहे हैं. कभी कभी तो मतलब जजेस ना बनकर खुद ही जो है पंडित बनकर वो काम कर रहे हैं. काफी थॉट प्रोवोकिंग रिमार्क्स रहे आपके. तो अभी हम जो है जल्दी से कुछ 10 मिनट रखते हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए, सवाल के लिए, कमेंट्स के लिए. तो अगर ऑडियंस में कोई है जो हमारे पैनलिस्ट से कुछ पूछना चाहते हैं या अपनी बात खुद रखना चाहते हैं, तो प्लीज हमें प्लीज अपना, या तो आप हाथ उठा सकते हैं, जूम में फीचर है, नहीं तो कमेंट बॉक्स जो है चैट बॉक्स में है, वहां पर भी अपना आप सवाल टाइप कर सकते हैं और हम फिर वो पढ़ लेंगे. अभी जो है अभी तक जो है एक सवाल आया है जो कि
इमरान सिद्दीकी ने पूछा है, जितेंद्र जी के रिमार्क्स के बाद उन्होंने पूछा था कि पेसा कानून को लागू करने के लिए जो 5वीं अनुसूची के जो क्षेत्र हैं वहां पर पेसा कानून लागू करने के लिए क्या कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट खास करके, वहां पर कोई केस है या फिर क्या केस उठाए जा सकते हैं? ये उनका सवाल है जितेंद्र जी के लिए। बाकी हमारे साथी जो हैं, प्लीज आप भी चैट बॉक्स में अपने सवाल उठा सकते हैं और हम वो पूछेंगे हमारे पैनलिस्ट से। तो जितेंद्र जी। थैंक यू असीम भाई। जो आपका सवाल है कि पेशा को लेकर के 1996 में जब पार्लियामेंट से इसे पास किया गया था, तब ये इस देश के लगभग 10 राज्यों में, खास करके जो सेंट्रल इंडिया में लोकेशन है, जिनकी राजस्थान हो या फिर बाकी की सब को देखिए, तो इन सब में इसको लागू होना था। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि पेशा अभी भी 25 साल हो गए, और 25 साल के बाद मैं अभी एक किताब पढ़ रहा था। ये किताब जो है पेशा कानून पर ही, अभी कल परसों ही श्रुति, एक एनजीओ है, उन्होंने और कुछ और लोगों ने मिलकर, जितेंद्र चहार और ऋचा पांडे जी हैं, उन्होंने ये इसको एडिटेड करके लेकर के आए किताब पेशा पर ही। इस किताब के जरिए, और बाकी हम लोग लगातार पढ़ते रहते हैं, उसमें पता चल रहा है कि 10 राज्यों में इसे लागू होना था। अभी भी ज्यादातर राज्य ऐसे जहां पर इसे लागू नहीं किया गया, सिर्फ झारखंड और छत्तीसगढ़ को छोड़ दें। और अभी अभी कुछ मतलब पिछले ही हफ्ते मध्य प्रदेश में इसे लागू किया गया। तो बाकी के हिस्से में तो है ही नहीं, राजस्थान में है नहीं, गुजरात में नहीं है, पेशा लागू ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट और ये सब, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये तय करते कि क्या एग्जीक्यूशन हो रहा है लॉ का कि नहीं हो रहा, वही नहीं, वो मामला ही गायब है। अब इसको लेकर के कौन सुप्रीम कोर्ट जाए, कौन हाई कोर्ट जाए, और जाके करेगा? क्योंकि हमें पता है डिलीवरी क्या होनी है। डिलीवरी के नाम पर वहां सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है, और फॉर्मेलिटी के नाम पर होगा एक उल्टा। हो सकता है कुछ आपके ही खाते में वापस कुछ रिवर्स ऐसा हो जाए कि वो सेल्फ गोल हो जाए, आपका ही कुछ बचा कुचा कुछ है वही चला जाए। ये डर भी रहता है आदिवासियों के केस में। और अक्सर ये देखा गया है कि आप कुछ अपना हक बचाने के लिए गए, और जब वापस लौटते तो पता चला कि आपके पास जो कुछ था उसको भी दे करके वापस लौट गए। ये खास करके पिछले दशकों में हम लोगों ने जो सीखा है, और पिछले दशकों में नहीं, अंग्रेजी हुकूमत के दौर में भी यही था और अभी भी यही है। तो ये चीज पेशा को लेकर के है। और जो कुछ इसके अलावा अगर हम लोग कोई सवाल होगा तो मैं इसको लूंगा, बाद में कंक्लूडिंग रिमार्क मुझे कुछ और ऐड करना है तो उसको लेकर के। थैंक यू। Thank you, Jitendra ji. Jitendra said that when it comes to the implementation of PESA, it has been a very bad record since 1996. There are hardly any states where PESA, the law has been enacted or the rules have been enacted to bring it into force, and that often the plight of people is that when they go to agitate for rights, they might find at the end of it that they have lost more than they have gained in the process. So thank you Jitendra ji उसके लिए। बाकी साथी अगर कुछ कमेंट करना चाहते हो, कोई टिप्पणी, कुछ सुझाव, कुछ सवाल अगर उठाना चाहते हैं, जो हमारे साथी फेसबुक पर हैं उनके लिए भी ये ऑप्शन है, आप फेसबुक पर भी अपने सवाल उठा सकते हैं। हम फेसबुक पर भी नजर रखे हुए हैं, जैसे कि फेसबुक हम पर नजर रखे हुए हैं, तो हम वहां पर भी आपके सवाल देख सकते हैं। चलिए हम एक सवाल मैं अपनी तरफ से पूछ लेती हूँ, और ये कोई भी पैनलिस्ट जो है इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहे तो कर सकते हैं। बट जिस तरह का हम रिप्रेशन देख रहे हैं और जिस तरह के सेटबैक्स हम देख रहे हैं पीपल्स मूवमेंट्स के ऊपर, कि जो भी अपने अधिकार की बात उठा रहे हैं या किसी तरह से अन्याय के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं पर जो है सरकार का और राज्य का
मतलब भारी तरह से रिप्रेशन उन्हीं पर आता है, वापस उनको जेल भेज दिया जाता है, या जैसे जहां जी ने बोला बुलडोजर जस्टिस का जो नाम दिया उन्होंने, अभी हमने कर्नाटका में भी देखा कि परेड्स में जो है बुलडोजर्स निकाले गए हैं। तो ऐसे इन मौकों पर कैसे हम एक दूसरे के साथ सॉलिडारिटीज बनाए रख सकते हैं और कैसे सहानुभूति दे सकते हैं और कैसे ये रिप्रेशन के खिलाफ जो है कैसे आवाज उठाई जा सके। Is it to me? कोई भी, जहाँ जी आप भी, इफ यू वांट टू गो प्लीज प्लीज। या तो मेरा व्यू ये है, हेलो, हाँ जी सुनाई दे रहा है। हाँ जी, मेरा व्यू है ये जो भी अभी चल रहा है वो अचानक कहीं से पैदा नहीं हुआ है. So the ruling party and the Sangh, it took 70 years. It penetrated into the civic society. इतना ज्यादा अंदर चले गए थे civic society के, they weaponized the mind. वो जो civic society में, though it is a negative term, but they worked a lot. Where we failed, progressive elements या minority या tribals, जो भी marginalized sections थे, due to several reasons, we failed to forecast की predict करना सोचे नहीं थे. Even the liberals थे, progressive थे, intellectuals थे, political analysts थे, ये खतरा हमने identify नहीं किया. एक दिन इंडियन डेमोक्रेसी एक राइटिस्ट फैसिस्ट रिजाइम में चले जाएगी धीरे धीरे, और इट विल हेड टुवर्ड्स अ मोनोलिथिक स्टेट. वी डिडंट आइडेंटिफाई. बेसिक डिफरेंस ये है, वी डिडंट वर्क इन द क्रॉस सेक्शन. बात वो है, हमने जब क्रॉस सेक्शन में काम नहीं किया था, हमने क्रॉस सेक्शन में, आपको एक एग्जांपल देती हूँ. हाल में आंध्र प्रदेश में एक वीडियो बना था, एक रिलीजियस लीडर थे, ही स्पोक अगेंस्ट द विमेन अटायर के बारे में. विमेन माने मिसोजिनिस्टिक बहुत कमेंट्स हुए थे उनके ऊपर. दूसरे एक प्रोग्रेसिव विमेन ने, शी मेड ए वीडियो. वो क्या हुआ, बैकलैश आ गया, क्योंकि हमने पहले से तैयारी नहीं की थी फेटर्निटी के बारे में, और वी फेल टू प्रिडिक्ट ये होने वाला है. ये जो कल्चर ऑफ ह्यूमैनिटी जो हमारे अंदर है, उसको बाहर निकालने का प्रयास हमने नहीं किया. हमने नाम से सेक्युलर बच गए. हम लोग का सेक्युलर डेफिनेशन ये हुआ, अपने अपने कंपार्टमेंट्स में जीने लगे हम. टॉलरेंस का मतलब अपने जगह जियो, इसलिए कम्युनल राइट्स इतना एरप्ट हुए. हम लोग टॉलरेंस वी डिडंट लीड बाय गिविंग रेस्पेक्ट और भी इज्जत और अपनापन. दूसरे जो भी डिफरेंसेस है वो कम्युनिटीज को हमने नहीं दिया. हमारा जो सोशल साइंटिस्ट था कम था, हमारे पढ़ाई में जो विजडम था वो कहीं पे नहीं था. इट डिडंट एरेडिकेट द सोशल इविल्स और सोशल डिस्पैरिटीज और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज. 70 इयर्स के पहले हमारे जो आइडियोलॉजीज है, उसी आइडियोलॉजीज अभी भी प्रिवेल होते हैं. दैट वी हैव टू टारगेट. उसका रेडीमेड कोई फार्मूला नहीं होगा. अभी अभी कुछ बना के हम फाइट करेंगे, ये नहीं होगा. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने. आई थिंक जो एक बात काफी उभर कर आई है जो आज के पैनलिस्ट से, कि जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान एक सिर्फ एक कानूनी डॉक्यूमेंट नहीं है, कि जो संविधान की जो बाबा साहब ने बोला था कि क्या मतलब, अगर हम अभी अपनी राजनीतिक स्ट्रक्चर्स का तो परिवर्तन कर रहे हैं, पर अपने समाज का परिवर्तन हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. और यही बात हम बार बार सुन रहे हैं कि शायद हम खुद के विचारों का और आपस में रहने के जो समाज की जो एक लोकतांत्रिक समाज जो होता है, जो उसको बनाने का जो आधार होता है, वो हम उस पर पिछले 75 साल से काम नहीं कर पाए हैं. और उसी का जो है रिजल्ट आज ये है कि सिर्फ स्टेट नहीं बदला है, सिर्फ सरकार और राज्य नहीं बदले हैं, बल्कि हमारे जो समाज के बीच में जो नफरत फैलाई गई है वो सबसे ज्यादा हानिकारक रही है. और उससे आगे बढ़ने का जरिया यही है कि हम मिलकर हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहें. तो फाइनल राउंड ऑफ कंक्लूडिंग रिमार्क्स
ले लेते हैं। अभी अनफॉर्चुनेटली तीस्ता जो है उनकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी, तो she has excused herself and she has left the meeting, but she is extending her solidarity to all struggles and extends her thanks to fellow panelists. तो बाकी जो हमारे साथ हैं, जितेंद्र जी, मीरा जी और जहां जी, concluding remarks 2 मिनट में जो आप राधिका, एक सवाल है। So in the concluding remarks, any of the panelists can also take that question. चंद्रचूड़ जी के बारे में। हाँ, sorry, I just saw, sorry. Question on Facebook by Amrit Prasad. Do you have any hopes of justice from the new Chief Justice of India, who will be Chief Justice for a stable 2 years? कि जो हमारे नए Chief Justice हैं चंद्रचूड़ जी, उनसे हमारी क्या उम्मीद है? काफी प्रोग्रेसिव फेस उनका माना जाता है, तो उनसे क्या हम कुछ उम्मीद रखते हैं? ओके, राधिका जी मैं शुरू करूं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू। सो जो हमारे साथी ने सवाल किया है, तो अगर मैं आदिवासी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कोई उम्मीद नहीं। इस तरह की उम्मीदें हमने पहले भी बहुत पाली थी। गोगोई के केस में हुआ था और भी कई लोगों के केस में हुआ, और उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके का रिजल्ट जो आया, वो आउटपुट क्या था, वो हम सबने देखा कि राज्यसभा लोग चले गए और कहीं और चले गए, और इस तरीके से होता है क्योंकि वो एक सिस्टम है, और सिस्टम में पता है कि जुडिशरी को आज की तारीख में कौन लोग कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। दोनों एक दूसरे की किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं ताकि उस सिस्टम को मेंटेन किया जा सके, सिस्टम में वो अपनी पावर पकड़ जो है उसको बचा करके रख सके। तो ऐसे में आदिवासियों को कोई उम्मीद नहीं है, और हो सकता है बाकी लोगों को और करनी भी चाहिए उम्मीद, तो खैर विश्वास है कि शायद आने वाले दिनों में हमें न्याय मिलेगा, लेकिन हमें ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो पहली चीज है। दूसरा, अगर मैं पूरे के पूरे 75 ईयर्स को देखने की कोशिश करूं तो पता चलेगा कि आज के दौर में आदिवासी जिस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जिस तरीके का संकट हमारे ऊपर है, चाहे लैंग्वेज के केस में देख लीजिए, आने वाले लगभग 10 सालों में 129 से ज्यादा ट्राइबल लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो इस देश के भीतर जो खत्म हो जाएंगी। लैंग्वेजेस, कल्चर के मामले में देखिए तो कल्चर का पता चलेगा कि बड़ी फोर्स है जो उनको हिंदू बनाना चाहते हैं, कुछ क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, कोई मुसलमान बनाना चाहता है, कोई बुद्धिस्ट बनाना चाहता है, कोई सिख बनाना चाहता है, कुछ लोग जैन बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि वो लोग जो हैं वो बचे रहे। जिस प्रैक्टिस को वो फॉलो करना चाहते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिस को, कल्चरल प्रैक्टिसेस को वो फॉलो करते रहे, हमें उससे कोई लेना नहीं, अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना चाहते। तो ये कल्चर पे भी हमारे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। हिस्ट्री को भी देखेंगे तो हिस्ट्री को भी कंप्लीटली इरेज करने की कोशिश हो रही है लगातार। हिस्ट्री राइटिंग जिस तरीके से चल रहा है, चाहे अभी के दौर में हो चाहे पहले दौर में हो, हिस्ट्री से भी बुक से भी जो है इरेज कर दिया गया। आपसे अगर पूछ लिया जाए 4 नाम की, 4 जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के नाम बता दीजिए, तो पता चलेगा कि ज्यादातर लोग गायब हो जाएंगे। किसी को नहीं पता तिलका मांझी कौन थे, कुमरम भीम कौन है, बाबूराव सेठमा के कौन थे, टंट्या कौन है, और बहुत सारे जो संथाल उल के लोग थे वो कौन लोग हैं कोई नहीं जानता, गुंडाधुर को कोई नहीं जानता। तो ऐसे इस तरीके की पूरी सीरीज है, वहां उस हिस्ट्री को भी इरेज करने की कोशिश चल रही है। उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें, जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो है, आज इन सब थ्रेट्स के बाद भी जो सबसे बड़ा थ्रेट आ चुका है, और वो ये है कि जिस तरीके से कंपनीज को इन ट्राइबल एरियाज में ले जाया जा रहा है, मिलिट्री को इस एरिया में ले जाया जा रहा है, वहां पर जैसे जैसे इनका डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ हो ये रहा है कि उनकी कल्चर खत्म हो रही है, कल्चर के साथ साथ उनकी सारी प्रैक्टिस खत्म हो रही है, और आदिवासियों को बचाए रखने के लिए जो सबसे जरूरी चीजें थी उसमें वो कल्चरल प्रैक्टिसेज उनकी थी, उनका जो रिलेशन था जंगल के साथ में, उनका जो एनवायरमेंट के साथ जो रिलेशन था वो खत्म हो रहा, और जैसे जैसे ये चीजें खत्म होती है, उनका आदिवासियों का जो होने का जो मतलब है वही खत्म हो जाएगा। एक नॉर्मल इंसान, जो सामान्य व्यक्ति जो शहरों में जिस तरीके से जीवन जी रहा, जो आदिवासी जंगल में जीवन जी रहा, उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, और ऐसे में होगा कि उसका जो रियल जो इसेंस है वो ही खत्म हो जाए। और ऐसे में अगर हम लोग देखें तो पता चलेगा कि आदिवासी इस तरीके की क्राइसिस से जूझ रहा है, और सरकारें इसमें जो है आदिवासियों के अस्तित्व को खत्म करने में शामिल है। हम मानते हैं कि आदिवासियों का अस्तित्व को अगर किसी के द्वारा खत्म किया जाता है, वो इस देश की सरकार है, और तमाम लोग हैं जो सरकारों के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, और बाकी लोग।
और वो यही चाहते हैं कि इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए। अमेरिका से लेकर के ऑस्ट्रेलिया के भीतर हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देखे जहाँ पर इस तरीके के एविडेंस हमारे सामने नेटिव लोगों को खत्म कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में तो फिर भी कई जगह जो राइट्स को प्रोटेक्ट किया, लेकिन इंडिया के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए आदिवासी आफ्टर 75 इयर्स एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजरे। जी थैंक यू। और एक और एग्जांपल, बस एक छोटा सा एग्जांपल, वो एग्जांपल ये है कि लास्ट ईयर नागालैंड के भीतर नवंबर दिसंबर के महीने में 14 जो ट्राइबल्स थे को गोली से मार दिया गया हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। और जब पार्लियामेंट में क्वेश्चन हुआ तो हम मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया था कि हम उनको पहचान नहीं पाए, वो पहचान का संकट था इसलिए वो शूट कर दिए गए। ये पिछले साल का केस है। और इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो राजस्थान के डूंगरपुर में काकरी डोंगरी का केस है। आपका गुजरात के भीतर आप देख लीजिए जहां पर सरदार पटेल का स्टेच्यू बनाया गया, सिंगेर का केस लीजिए, तमाम जगहों पर देख लीजिए स्टेट जिस तरीके से अटैक कर रहा है उसके जरिए आपको क्लियर कट दिखेगा कि आदिवासियों को खत्म करने की साजिश है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब कहते हैं राइट टू लाइफ, और पर क्लियरली स्टेट के नजरिए में कुछ लाइव्स जो हैं उतनी मायने नहीं रखती हैं, और हम कैसे इतनी आसानी से इन मैसेकर्स को जो है पब्लिक मेमोरी से भुला देते हैं। थैंक यू जितेंद्र जी। मीरा जी एंड जहां जी, फाइनल रिमार्क्स, जस्ट क्विक फाइनल रिमार्क्स। मैं ये कहना चाहती हूँ कि काफी डिस्कशंस, डिबेट, एनालिसिस वगैरह, रीजनली स्पेसिफिक डिस्कशंस और ऑपोजिशनल काइंड ऑफ डिस्कसेस चल रहे। एंड रेजिस्टेंस जो सिटीजन्स एक्ट में उसके आधार पर, उसके फ्रेमवर्क पर काफी डिस्कशंस रीजन्स में चल रहे हैं। और जैसे केरल में फॉर इंस्टेंस among Muslim girls, Muslim women, बहुत ही interesting dialogues or discussions on what is the tradition, what is scientific, उसमें पसमंदा Muslims, caste among the Muslims. So I think ये diverse conversations जो हो रहे वो we need to sort of have some kind of interlinkages ये अलग regionally specific हो या अलग region. Also how ये इसको हम political process में ये कैसे ये अलग conversations political process में to bring it into the conversation of the mainstream political process also, I think वो बहुत ही important है क्योंकि अलग-अलग resistance हो रहे, अलग-अलग debates हो रहे regions में अपने सवालों को उठकर, पर उसको हम political process को कैसे influence करें, कैसे उस पर कुछ impact हो और कैसे ये अलग discussions को इकट्ठा लाए, I think that is a big challenge for us. Yeah, fair. I mean, resistance is also decentralized. Resistance is also we should accept there is resistance going. Yeah, definitely. Jaha ji. So concluding remarks ये है, so forgetting the basic nature and the background of the society, we can't imbibe any political philosophies. ये proven fact है. डेमोक्रेसी जो हम लोग ने डेमोक्रेसी, पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी को रख लिया, रिपब्लिक को रख लिया, हर चीज रख लिया, लेकिन अनलेस यू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी टू द पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, आपको हर चीज एक मौकरी ही बचेगा. और जैसा अभी मीरा मैडम ने कहा थे, लॉट ऑफ रेसिस्टेंस मूवमेंट्स है लाइफ में, डायनामिक है लाइफ में तो रेसिस्टेंस फ्रिक्शन चलता ही रहेगा और हर जगह आवाज उठती ही रहेगी. अनलेस वी ऑल टुगेदर स्ट्रेंथन अवरसेल्फ, और जितने भी ये रेसिस्ट करते हैं, जो भी वो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के अगेंस्ट बात करते हैं और हर एक इंडिविजुअल राइट्स के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं, उनमें और थोड़ा कंसोलिडेटेड ये भाईचारा बढ़ना चाहिए. और वी हैव टू एक्ट सिचुएशन के हिसाब से, काम ज्यादा करना पड़ेगा सिविल सोसाइटी में. अनलेस यू वर्क इन द सिविल सोसाइटी कुछ भी नहीं होगा. यू हैव टू चेंज द सोसाइटी, यू हैव टू गेन द ट्रस्ट ऑफ द सोसाइटी,
और सोसाइटी का जो परसेप्शंस और प्रायोरिटीज है उसको बदलना पड़ेगा। रिलीजन एक प्राइवेट अफेयर होता है। रिलीजन इट शुड बी इन योर होम, फेथ, रिलीजन, जो भी बिलीफ है। लेकिन बाकी के जो प्रोग्रेसिव और रियलिस्टिक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, फैक्टर्स है, नौकरी है, करप्शन है, हर चीज जो भी है डेमोक्रेसी को मानना चाहता है उसके अगेंस्ट हम बात करने का पड़ेगा। लेकिन हमारा नरेशन तो हमेशा डिस्कोर्स रिलीजन के ऊपर ही जाता है, प्रैक्टिसेस के ऊपर ही जाता है। सो क्लास के बारे में बात करना पड़ेगा, जरूरत के बारे में बात करना पड़ेगा, सोसाइटी का नजरिया बदलाने में वी शुड मेक एन एफर्ट। That's the thing. I think very well spoken. I think the key takeaway for all of us today is that the best way to defend our constitutional democratic republic is for us to become constitutional democratic people. Yes. And with on that note, I thank you all for joining today and for your very incisive and thought-provoking remarks. I think it's always useful to keep looking back to look forward. And I think we have a lot to look forward to with peers like this. So thank you very much. Thank you to everyone, and thank you to NAPM for Thank you. organizing. Thank you. Thank you. Thank you and good night. Meera, Thank you. thank you, madam. Thank you, Radhika ji. Thank you. Thanks so Keep much, in Radhika touch, madam, Meera. bye. moderating Keep in Jitendra sir, touch. bye. Meera, keep in Okay, okay. touch. Yeah.